To introduce the speaker, CA Rohit Kapoor ji, qualified in the year 2007. He has got 14 years of practical exposure in the field of direct taxes with specialization in search and seizure cases, Benami matters, settlement commission and appellate matters. He is vice chairman of AIFTP North Zone Direct Tax Committee. He is the author of many articles published on various platforms, that is Taxman, Tax Management India from time to time, and delivered various seminars on direct taxes, including Benami, search and seizure, to industry and professionals. The topic for today, as already told by R.P. Bharadwaj ji, our convener, is recent developments in charitable trusts, including e-filing issues in the form at portal. Members, you are all aware that recently there was an amendment brought through the finance bill which mandated all the existing trusts to get themselves again registered at the portal, because in some of the cases their documents were not available. Some of the trusts, they are more than 100 years of old, but it was assured that it will be almost automatic approval in all the cases. But definitely the direct tax officials would have an opportunity to look at the cases where returns are not being filed, where huge demands are pending, where they could call in the professionals. Besides this, there were some hiccups initially in the portal also. The form was uploaded quite late, and but now I understand that it is working smoothly. So for all this discussion, we have invited CA Rohit Kapoor ji to deliberate on all these issues and guide us. He will be sharing his details also with you, so that in case you have any particular query, you can again revert to him. With this, over to CA Rohit Kapoor ji. Again, very warm welcome in our study circle. First of all, I thank R.K. Gupta ji, founder, who has given me this opportunity to deliberate the topic recent changes in charitable trust, R.P. Bharadwaj ji, convener, CA Sunil Gupta ji, deputy convener, and all the managing committee members. With this, I take the liberty to start the webinar, which deals with the changes in the charitable trust. Before starting the webinar, I just want to go with a quick thing that what were the changes which were made by Finance Act 2021. Though the Finance Act 2021 talks about financial year 21-22, but these are very, very important, because while doing the audit for financial year 2021, we have to take certain things which should be taken into account, so that there should be no error on the part of the auditor, or there should be no harm, there should be nothing wrong should be done for the clients. I first start with the corpus donation. Within 5 minutes, we will shift to the charitable trust. Just for the review, I just want to take this issue also. What is corpus donation? Sir, the corpus donation was exempt under section 11(1)(d) in earlier regime. We all are aware कि 11(1) subsection D में हमारे पास corpus donation क्या होता था? Exempt होता था. But my dear friends, remember, this is only up to 31st March 2021. सर मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? गुप्ता सर, मैं स्क्रीन इज विजिबल ना? नहीं, आपका प्रेजेंटेशन तो नहीं आ रहा नजर सर. एक मिनट सर. हाँ, you are visible, but your PPT is not visible. I hope you have not shared it yet. So now it is visible? Yes, sir. It is visible now, sir? Yes, sir. Now we were talking about corpus donation, and what are the repercussions of the corpus donation? But your PPT is not. The PPT is again not visible? It is visible, sir. Gupta ji, मेरे को दिख रही है स्क्रीन पे. गुप्ता जी, I am able to see. ठीक है, मैं देखता हूं. गुप्ता जी, it is visible or not? नहीं दिख रही है सर. Recent development in charitable trust section 1023C पे पेज आपको it is being displayed.
मुझे क्यों नहीं नजर आ रही है? Should I start, sir? कॉर्पस डोनेशन सेक्शन 11 and 10 ब्रैकेट 23C, ये हेडिंग है पेज का जो भी चल रहा है. हाँ. Now I am just starting with the corpus donation. The corpus donation Yes, now up to it is 31st visible. Okay. Okay. We were talking about the corpus donation. The corpus donation in earlier regime up to 31st March 2020-21, it was exempt under section 11(1)(d). There was no condition. Dear friends, कोई condition नहीं थी कि that it should be invested in 11(5) securities. There was no such condition, but this condition was only up to 31st March 2021. But Finance Act 2021 has made the amendment and has said that the corpus donation should also be will be available to exemption only with the condition that if these are invested in the prescribed mode under section 11(5). Therefore, if I take example, in my first example, if I talk about 31st March 2021, where the general contribution was 400, corpus donation was 150, and total funds were available with the SECI was 550. Now, without any condition, I was getting 150 exemption under earlier regime up to 31st March 2021. Therefore, जब हम 31st March 2021 को audit करेंगे, we all will take this exemption without investing in 11(5) securities. But we have to be careful. What precautions we have to take, I will discuss in a couple of minutes. Now, what is the criteria is that I have received the corpus donation of rupees 150. It is exempt. I haven't invested in 11(5) securities. I can use these funds even for the general things, even for the other than corpus, from where even for the other things which were not mentioned in the corpus. Meaning thereby, I was able to get this exemption. If I talk about this section, the total general contribution was 400 and 150 was corpus donation. Assessee ने क्या किया? Total 500 rupees, 400 out of general contribution and 100 out of corpus. He made normal application. He was allowed application in 11(1) in 85%. There was no restriction. Meaning thereby, if I take what will be the taxability, total funds received were 550. Out of 550, 150 are exempt. Balance amount left is 400. Now out of this 400, the gentleman has spent 500 rupees. Meaning thereby there was a deficit of rupees 100. And there was a leading judgment of Apex Court in Subro Education Society which says that this deficit shall be allowed to be carried forward. This was my earlier regime up to 31st March 2021. Now, what are the changes which have been made in 2020, 21, 22? This deficit which was we were taking, though it was not in the ITRs, but we were taking the judgment support and were claiming in assessments. This has been mentioned in the section that in explanation that after this no carry forward shall be allowed. Meaning thereby you have to, if there is any carry forward, it will be available up to 31st March 2021 and not thereafter. So what we have concluded here, if I talk about 2021, there was no restriction for corpus donation. I am now coming to 21-22, what will be the equation here? In the same example, 400 was the general contribution, 150 was the corpus contribution, total funds were 550. I am talking about now financial year 21-22. Please be bear with me, my friends. मैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं. 21-22 फाइनेंशियल ईयर में उसने 11(5) में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया. Meaning thereby, question is whether I can use this 150 in normal application. What this SSC has done, 400 he has received contribution of general contribution, 150 he has received as a corpus contribution. But he spent all the amount in normal contribution, meaning thereby 400 that he received, he also spent in normal application. 150 which he has received, he also expended for corpus amount in normal application. Dear friends, with effect from 21-22, the corpus donation exemption will only be available if it is spended for the purpose for which it was made, or it has to be made investment in 11(5) securities. Meaning thereby, though he has invested 550, but the exemption amount will be restricted to 400 because he will get exemption if he has invested in 11(5). Continuing this example, I am shifting to the next year. The next year, what is the criteria? General contribution was 400, corpus donation was 0. Total funds available were 450. Out of general contribution, he made investment in 11(5).
तो 11/5 की जो इन्वेस्टमेंट उसने पिछले साल करनी थी वो नेक्स्ट ईयर में आके की, तो क्या हमें 11/5 में क्या इसकी डिडक्शन मिल जाएगी? डियर फ्रेंड्स, दिस एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल इन meaning thereby. Now if I go to section, what does section says? Corpus donation not to be treated as application but will be treated as application in the subsequent years in which it is invested in 11/5. So corpus donation की आपको डिडक्शन 21-22 फाइनेंशियल ईयर में तभी मिल पाएगी अगर 11/5 की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। अगर 11/5 की सिक्योरिटीज में उस साल में इन्वेस्ट नहीं किया और नेक्स्ट ईयर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको उसके नेक्स्ट ईयर में उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। Now there was also a change regarding the repayment of loan. There is a very simple change. रीपेमेंट ऑफ लोन की सर हमें उस साल में डिडक्शन मिलेगी जिस साल में हम पेमेंट लोन की रीपेमेंट करेंगे। मान लीजिए मेरे इस एग्जांपल में जनरल कंट्रीब्यूशन थी 500, फिक्स्ड एसेट परचेज क्या 700। वो कहते हैं फिक्स्ड एसेट में से लोन अमाउंट माइनस कर दीजिए। तो इसमें से अगर मैं लोन अमाउंट माइनस कर दूं, मेरे एग्जांपल में कितना है 200 रुपीज, तो मेरे पास फिक्स्ड एसेट कितने का परचेज किया गया आउट ऑफ माय ओन फंड्स 500, प्लस इसमें कर दीजिए रीपेमेंट ऑफ लोन, मीनिंग देयर बाय लोन अवेल्ड कैन नॉट बी टेकन एज एप्लीकेशन। दिस इज द होल अमेंडमेंट, दिस वाज द इन मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन रजिस्ट्रेशन पार्ट। सर हम सबको पता है कि पहले रजिस्ट्रेशन परपेचुअल थी, आज की डेट में सारे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रिविजिट कर दिया है कि जी आप इस सारी सेक्शंस को सेक्शन 12A भी इंट्रोड्यूस कर दिया, उधर से 1023C में फर्स्ट प्रोवाइजो ले आए। तो जस्ट पहले मैं एक बड़ी ओल्ड सेक्शंस पे जा रहा हूं, ओल्ड सेक्शंस में क्या था और न्यू सेक्शंस में क्या। सर हमें पता है कि हम रजिस्ट्रेशन कौन कौन से सेक्शन में लेते थे, 12A, 12AA, सेकंड भी हम, सर मैं वर्ड यहां पे यूज कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन। तो डियर फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन इज ओनली वर्ड टू बी यूज्ड इन सेक्शन 11 and 12 and approval word is to be used for section 1023C, meaning thereby अगर मैंने कोई भी एग्जम्पशन लेनी है 1023C की, तो जहां पे वर्ड अप्रूवल है वहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या है अप्रूवल। मैं अभी पुराने सेक्शंस की बात कर रहा हूं। फिर हम बात करते हैं ATG के लिए। सर पहले मेरे पास यहाँ पे अलग अलग फॉर्म थे, फॉर्म 10A, फॉर्म 56 और फॉर्म 10G। आज की डेट में एक ही फॉर्म है 10A। हम देखेंगे कौन कौन से फॉर्म हैं और क्या क्या चेंजेस हैं विद इन नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन आई विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड वी विल कम। पहले हमारे पास एक बार आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई तो परपेचुइटी में मिलती थी, यू डोंट हैव टू अप्लाई अगेन, इट वंस यू गेट इट, इट इज फॉर योर लाइफ टाइम अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय CIT। और इसका फॉर्म ऑडिट होता था 10B में। तो ये किसकी बात कर रहा हूं सर, मैं बात कर रहा हूं सर रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में आ रही है सर, 11-12 की बात कर रहा हूं। 12A, 12AA में हम किसकी बात करते थे, रजिस्ट्रेशन की, और अप्रूवल किस में बात करते थे 1023C। फ्रेंड्स प्लीज बी विद मी। हमारे पास 4 सेक्शंस हैं जिसमें हम अप्रूवल की बात करते थे, इसके अलावा और भी हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा अभी। पहला मेरे पास क्या है 1023C क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 एंड क्लॉज 6A। ये 4 सेक्शन हैं जिसमें अप्रूवल की बात कर रहे थे। सर पहले मैं डील करता हूं 1023C क्लॉज 5, trust institutions for public religious purpose or charitable and religious purpose approved by prescribed authority। सर 2007 से पहले एक नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की आती थी इन ऑफिशियल गजट, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को रजिस्टर किया जाता था पब्लिक रिलीजियस पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अमृतसर की बात करूं तो गोल्डन टेंपल वाज वन ऑफ द टेंपल व्हिच वाज रजिस्टर्ड, व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C clause 5, provided they are approved by the prescribed authority or their name is appearing in the official gazette in the list which is central government has given. Now what the changes they are made, I will discuss in the next slide what the changes are there. Second, if it talks about public religious purpose, and similarly 1023C clause 4 talks about charitable purpose. ये दोनों सेक्शन किसके बारे में बात करते थे, जिनका ऑफिशियल गजट में नाम है, जिन इंस्टीट्यूशंस का, उनको ही आपको एग्जम्पशन मिलती थी, वो माने जाते थे, वो अप्रूव्ड है। अब आ जाऊं सर मैं 6 और 6A में, ये इंपॉर्टेंट है, हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज हो रहे हैं, इसके लिए देखते हैं। सर 1023C 6 talks about education institution solely for education purpose other than 1023C 3AB substantially financed by government। सर हमें पता है 1023AB में हमें
गवर्नमेंट अगर एक इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया हुआ है और मोर देन 50% गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, हमें आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। सर 1023 में कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो मैंने पहले ही कह दिया वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसमें अप्रूवल नहीं है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आज टॉपिक कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन किसको करानी है? वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका पास गवर्नमेंट ने सब्सटेंस नहीं किया हुआ, जिनकी एनुअल रिसिप्ट 1 करोड़ से कम है, जो प्रेजेंट रजीम में 5 करोड़ कर दी गई है। मीनिंग देयर बाय, मैं अगर एक इंस्टीट्यूशन की बात करूं, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल है, उसकी जो टोटल रिसिप्ट है 15 करोड़ है, तो क्या वो 1023C क्लॉज 6 में कवर होएगा? बिल्कुल कवर होएगा। वर्ड क्या है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सोली फॉर एजुकेशन पर्पस, अदर देन 1023C, 3AB कौन से हैं? जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस कर रखी हैं, और यहाँ पे सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट का मीनिंग था मोर देन 50% एज पर रूल 2BBB। अब बात करते हैं सर हॉस्पिटल की। ऐसे ही हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस नहीं किए, और वो हॉस्पिटल्स जिनकी रिसिप्ट 1 करोड़ से कम थी, जो करंट फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंस एक्ट 2021 में लिमिट किसमें कर दी? 5 करोड़। तो मैंने पहले ये देखा कि किन किन को रजिस्ट्रेशन मिलनी है। एक 12A वालों को लेनी थी, एक 12AA वालों को लेनी थी, एक 1023C क्लॉज 4, 5, 6 एंड 6A। उसके बाद आ गया सर अप्रूवल अंडर सेक्शन 80G। सर हमेशा मेरे बात याद रखना, 80G अप्रूवल इज ओनली अवेलेबल टू इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस। प्लीज बी विद मी। 80G 5 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आपको डिडक्शन तब मिलेगी, किसको अप्रूवल मिलेगी? 80G वाला कौन अप्रूवल ले सकता है? इसका मतलब मीनिंग देयर बाय, जो 80G की बात कर रहे हैं हम, उस केस में किसको मिलेगी? जो चैरिटेबल पर्पस में डील करता हो, और किसको नहीं मिलेगी? जो चैरिटेबल पर्पस में डील नहीं करता हो। इसका मतलब अगर एक इंस्टीट्यूशन ओनली रिलीजियस पर्पस के लिए है, तो उसको 80G की डिडक्शन, उसको अप्रूवल नहीं लेनी होती। एक 80G 5B में उन्होंने एक प्रोविजो लगाया हुआ है, एक सेक्शन दिया हुआ है कि 5% अगर रिलीजियस और चैरिटेबल हैं, तो 5% अगर रिलीजियस है ऑफ टोटल इनकम, वर्ड हियर इज टोटल इनकम, और टोटल इनकम का मीनिंग नेट टोटल इनकम नहीं है आफ्टर एक्सपेंडिचर। मैंने एक केस तो दिया हुआ है, श्री ललिता आश्रम ट्रस्ट 39 SOT 324। ये क्या बात कर रहा है सर? ये कहना चाह रहा है कि अगर 5% तक आपका बिजनेस, आपका पर्पस रिलीजियस और चैरिटेबल है, तो भी मैं आपको क्या दे दूंगा? 80G की अप्रूवल दे दूंगा। मीनिंग देयर बाय, मैं इसको सम अप करूं तो 12A में 2 थी, 1023C में 4 थी, और 80G में चल रही थी। दीज आर दी ओल्ड। और यहाँ पे क्या था? प्रीपेचुअल। यहाँ पे भी क्या था? प्रीपेचुअल। 2009 के बाद 80G में भी प्रीपेचुअल था, 2009 से पहले 80G प्रीपेचुअल नहीं था। चलिए सर, अब हम बात कर रहे हैं न्यू रिजीम। सर न्यू रिजीम में क्या हुआ? सबसे पहले देखेंगे सेक्शन कौन सा आया। सर सेक्शन 12A में अमेंडमेंट की गई, और मैंने ऊपर लिखा है 12A सब सेक्शन 1 सब सेक्शन AC रेड विद सेक्शन 12A। अब इसको पहले समझेंगे सेक्शन है क्या। और फ्रेंड्स प्लीज बी विद मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको फॉर्म भरने से में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिलीव मी कि जी जब मैं आप फॉर्म फिल करोगे, यू विल नॉट फेस इवन ए सिंगल प्रॉब्लम। 12A A1 AC 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, 5 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले मैंने 1 और 6 इकट्ठा दिया हुआ है, जान पूछ के 1 और 6 को इकट्ठा दिया है, और सेकंड, थर्ड, 4, 5 को इधर किया। तो पहले मैं एक्ट पे चलता हूं। 12A सब सेक्शन 1 AC कहता क्या है? सर जो इंस्टीट्यूशन पहले रजिस्टर्ड थे, तो मैंने पहला केस कौन सा कर दिया? रजिस्टर्ड इन ओल्ड रिजीम। रजिस्टर्ड इन ओल्ड रिजीम हियर मींस, मैं बात किसकी कर रहा हूं? अभी 12A की बात कर रहा हूं। इसका मतलब अगर वो पहले से रजिस्टर्ड था, तो हम इसको किस पार्ट में कवर करेंगे? 1 में। सेकंड पार्ट, इन एनी अदर केस। सर यहाँ पे वर्ड लिख रहा है इन एनी अदर केस। इसका मतलब अगर किसी इन चारों में कवर नहीं हुए, तो मैं इन एनी अदर केस में आपको कवर कर। यहाँ पे मैंने एक जान पूछ के लिख दिया, यहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड फॉर 5 years। इसका मतलब अगर आप 12A सब सेक्शन 1 AC का क्लॉज 1 में आते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन जो पहले प्रीपेचुअल थी, आप पास पहले रजिस्ट्रेशन थी। क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द ओल्ड regime, and clause 6 talks about
you are not registered in old regime, you are taking registration for the first time. Friends, 1 किसके बारे में बात करता है? मेरे पास पहले रजिस्ट्रेशन थी। 6 किसके बारे में बात करता था? मेरे पास पहले रजिस्ट्रेशन नहीं थी, मैं पहली बार आ रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिखा ये कितने ईयर्स के लिए मिलती है? 5 ईयर्स के लिए। ये कितने ईयर्स के लिए मिलती है? 3 ईयर्स के। अब अगले वाले एक बार हिंट ले लें, कहते हैं फिर करेंगे इसको डिटेल में बात। सर 5 साल जब एक्सपायर होंगे तो इसकी क्या कराने पड़ेगी? रिन्यूअल। तो मैंने वर्ड यहाँ पे क्या लिख दिया? री रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रेशन ए रजिस्टर्ड इन न्यू regime। इसका मतलब ये वाले जब 5 इयर्स एक्सपायर हो जाएंगे तो आपको 12A1 AC में आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सिमिलरली जब इसके 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे तो इसकी भी लेनी पड़ेगी। इसका कौन सा क्लॉज हो गया? क्लॉज 3। अब मेरे पास 4 क्लॉज मैंने यहाँ पे कवर कर दिए 12AC के। उसके बाद कौन सा है सर? क्लॉज 4 और क्लॉज 5। पहले क्लॉज 5 कर लेते हैं। क्लॉज 5 में लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, वर्ड पे जाना, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मेरे को फोन आया, सर मेरे ट्रस्ट डीड में डिसोल्यूशन क्लॉज नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आप मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो आप किस में जाएंगे? क्लॉज 5 में जाएंगे। पहले आपका ऑब्जेक्ट था कि आप चैरिटेबल करते हैं, अब आपने वहां पे एक रिलीजियस एक्टिविटी भी शुरू कर दी, आपने मॉडिफाई कराए अपने ऑब्जेक्ट्स, तो मैं इसको क्या मानूंगा? मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मेरे पास सिर्फ रह गया क्लॉज 4। इसको मैं 5 बार डील करूंगा। तो मैंने पहला दोबारा से रिवाइज करता हूं। क्लॉज 1 ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ओल्ड regime, नाउ टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर न्यू regime। क्लॉज 6 मेरे पास पहले रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्लॉज 3 मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन यहां पे थी उसको मैं क्या करा रहा हूं? रिन्यू करा रहा हूं। और क्लॉज 3 किसके बारे में बात करते हैं? री रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविजनल। इसका मतलब जो मुझे यहाँ पे 3 साल के लिए मिली थी मैं उसको रिन्यू कराऊंगा और यहाँ पे भी कितनी मिल जाएगी? 5। तो मैंने सर नीचे फॉर्म दिए में, फॉर्म में कौन सा लिखा? फॉर्म 10 में, और लिख दिया कोई इंक्वायरी नहीं करेगा। और CIT तुम्हें क्या देना पड़ेगा? 10AC में क्या देना पड़ेगा आपको उसको अप्रूवल देके आपको उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। There are 1000 questions in mind how to fill this form। वो इंक्वायरी कर सकता है कि नहीं कर सकता, एक एक क्वेश्चन अच्छे से एड्रेस करेंगे। और पैरेलली मैं बात करूं 2, 3, 4, 5, उसमें कौन सा फॉर्म इश्यू होना है सर? फॉर्म कौन सा लगना है? 10AB। डियर फ्रेंड्स, उसमें कौन सा फॉर्म लगना है? 10AB लगना है, और 10AB में इंक्वायरी होएगी। इसका मतलब जब री रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी इंक्वायरी होएगी। अगर इंक्वायरी होएगी तो उसमें वो क्या कर सकता है? एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। और मैंने जानबूझ के वर्ड डाला यहाँ पे, एक्ट में लिखा हुआ वर्ड एंड कैंसल, विच इज वेरी मच रेलिवेंट। क्यों वर्ड यहाँ पे कैंसल लिखा है? क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी 115 TD पे भी आपको बताना है कि जी 115 TD की डिस्कशन इस पे जो है लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। दिस इश्यू विल ऑल्सो बी कवर। तो सर अगर मैं रिवर्स पे जाऊं तो इसमें 5 इयर्स की थी, इसमें कितने की है? 3 इयर्स की है। इसमें कितने की है? सारों में, इस सब में कितने की है सर? 5 साल की रजिस्ट्रेशन। मीनिंग देयर बाय हमने ये थंब रूल बना लिया कि फॉर्म 10A किसमें लगेगा? क्लॉज 1 और क्लॉज 6 में। और 10AB किसमें लगेगा? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। और 10AB में वो इंक्वायरी कर सकता है। इंक्वायरी करने के बाद वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। जबकि मैंने यहाँ पे 10A में खाली लिखा है एक्सेप्ट ओनली, बिकॉज देयर इज नो स्कोप ऑफ इंक्वायरी। We will discuss this section. Parallel amendment in section 1023C। सर 1023C में वर्ड क्या था? अप्रूवल। हमने कब पढ़ा था ये? अभी we have just read in approval कि जी अप्रूवल किस में होती है? सिर्फ 1023C में अप्रूवल होती है, और 12 में क्या होती है? रजिस्ट्रेशन होती है। तो उसके भी 4 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो में 1023C में फाइनेंस एक्ट 20 ने 4 प्रोवाइजो ऐड किए थे। वेरी इजी। अप्रूव्ड इन ओल्ड regime सेम, और इन एनी अदर केस मींस यहाँ पे क्या है? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सेम एज 12A। इसमें क्या है? इसकी रिन्यूअल। और इसमें क्या है? इसकी रिन्यूअल। फॉर्म कौन सा जाएगा इसमें? 10A। इसमें कौन सा जाएगा? 10AB। और इसमें कितने मिलेंगे? 5 इयर्स। इसमें कितने मिलेंगे? 3 इयर्स। रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में आनी है? 10AC में। मीनिंग देयर बाय मैंने अप्रूवल भी कवर कर दी, मैंने रजिस्ट्रेशन भी कवर कर दी। अब मेरे इश्यूज, मैं वापस आ रहा हूं सर इस स्लाइड पे जहां पे मैंने कहा था कि जी आप पास रजिस्टर्ड हो आप ओल्ड regime। तो सर एक बहुत आज टॉपिक चल रहा है विच इज वेरी हॉट टॉपिक कि मैं रजिस्ट्रेशन को अगर रिन्यू नहीं कराता तो उसका क्या होगा।
तो आई हैव जस्ट बाइफरकेटेड दैट कि भी इशू नंबर वन क्या है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आप आगे इसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको नहीं रिन्यू कराते तो व्हाट प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल. दिस इज द कोर इशू व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस. पार्ट ए, दिस इज द पार्ट ए. पार्ट ए क्या कह रहा है सर? ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑब्लिक अप्रूव्ड इन ओल्ड रजिस्टर. 31 मार्च 2021 तक मेरे पास अप्रूवल थी या मेरे पास रजिस्ट्रेशन थी. सर आपको एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में देनी है? 10A में देनी है. वी हैव ऑलरेडी रेड दिस कि हमें 10A में एप्लीकेशन देनी है. और प्लीज डियर फ्रेंड्स, आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कल तक कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी. माय पीरियड इज अप टू 30th जून 2021. अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना चाहते हैं, चाहे आपकी अप्रूवल थी चाहे आपकी रजिस्ट्रेशन थी, period is limited. From 1st April 2021 countdown has begun and it is ending on 30th June 2021. रजिस्ट्रेशन कितनी देर के लिए आनी है बता दिया हुआ है सर आपको. रजिस्ट्रेशन कितनी देर के लिए आएगी ये बात कर रहे हैं जिनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन थी. मैं नई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा, मैं अपनी रजिस्ट्रेशन को क्या करा रहा हूं, रिन्यू करा रहा हूं. तो इस केस में रजिस्ट्रेशन कौन से में आएगी? 10AC में और 5 साल. सीआईटी को ऑर्डर कितनी देर में पास करना है? सर अगर मैं अप्रैल में, मई आज चल रहा है, अगर मैं मई में कराता हूं डिपॉजिट तो मई के एंड से 31 मई से लेकर 3 मंथ्स गिन लीजिए, यानी कि जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त तक आपको वो 10AC फॉर्म इशू करना मैंडेटरी है. सर ये तो इशू हो गया कि मैं अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं. बी पार्ट क्या है? मैं रिन्यूअल नहीं कराना चाहता. I just want to forego my registration and just want to come out of 11 and 12. Can I do this? Or there are some sections which will be invoked. There is a section 115 TD which says that क्या इसमें 115 TD लग जाएगा? सर 115 TD कब लगता है? Where convert, मैंने उसके इश्यूज दिए हैं. क्या इशू पहला दिया है? Conversion into any form not eligible for grant of registration has or registration has been cancelled. Sir, that is registration has been cancelled. क्या मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है? मैं तो खुद कह रहा हूं मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए. तो टू माय व्यू 115 TD नहीं लग सकता. आई हैव पुट ऑलरेडी अक्रॉस 115 TD मेरे पे नहीं लग सकता. अगर मैं अपनी रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल के लिए 12AB में 12A1C 12A सबसेक्शन 1 AC के पार्ट 1 में रिन्यू नहीं डालता तो इट इज माय व्यू that there is no the section 115 TD cannot be invoked in my case. आगे जी, non submission of application for registration will not result in cancellation and 115 TD talks about cancellation, therefore ये नहीं लग सकता. इसका मतलब जो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो कब तक अप्लाई करेंगे? 30 जून 2021. कौन से फॉर्म में करेंगे? 10A में करेंगे. CIT कितनी देर में रजिस्ट्रेशन देगा? 3 मंथ्स में देगा from the end of the month in which the registration was applied. सर इसका डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने हैं? सारे इश्यूज हमने डिटेल में कवर करने हैं. we will cover. अब ये तो मैंने पार्ट अभी इशू किया, इसमें से सिर्फ वन के साथ मैंने क्लॉज कौन सा डील किया था? 6. Now I will start with the clause 6 also. ये आ गया मेरा 6. 6 क्या बात करता था सर? 6 बात करता था प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए तो बात पक्की है कि जी पहले मेरी रजिस्ट्रेशन थी नहीं, तो मैंने इसके 3 पार्ट्स बना दिए. इसको भी बांट कर देते हैं A, B and C. These are made by me and with sections I have mentioned कि कहां से मैंने इसको लिया. मैंने कहा जो ट्रस्ट 31 मार्च 21 के बाद बनी, इट इज पॉसिबल बिकॉज इन एनी अदर केस में क्या आएगा? ट्रस्ट बनी हो भी है. तो उन्होंने क्या, आपने पीरियड कितनी देर में आपने 10 अप्लाई करना है? एटलीस्ट 1 month प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर. फ्रेंड्स मेरे साथ रहें, मैंने अपनी ट्रस्ट मई 2021 में स्टार्ट की. ठीक है जी, बात को वर्ड क्या लिख रहा है? 1 month प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर. माइंड में क्वेश्चन आया, मई 2021 में मैं नई ट्रस्ट बना रहा हूं और मैंने स्टार्ट की, तो मेरा प्रीवियस ईयर कहां से होगा? अगर मैं सेक्शन 3 पे जाऊं, वो कहता है प्रीवियस ईयर का मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट. ये दिया हुआ प्रीवियस ईयर का मतलब सर. उसके नीचे एक प्रोवाइजो भी है. प्रोवाइजो क्या कहता है? दैट इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप or a source of income newly coming into existence, the financial year, the previous year shall be the period beginning from the setting up of business on the date on which source of income come into existence. So please, dear friends,
जब से आपने डोनेशन लेनी शुरू की तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, ईयर शुरू हो जाएगा। तो अगर मेरे केस में मई में मैंने ट्रस्ट बनाई और मुझे पहली डोनेशन सितंबर में आई, तो सितंबर से कितनी देर के लिए, 1 मंथ प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। इसका मतलब मेरे को अगर सितंबर में आनी है तो मुझे 30 अगस्त से मुझे इसकी क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी। ये बात किसकी बात कर रहा था सर, न्यू ट्रस्ट की, जो न्यू ट्रस्ट कब बनी है, आफ्टर 31 मार्च। ए क्लॉज में तो ये कर दिया कवर। अब बी क्लॉज में आता हूं सर। बी क्लॉज में क्या है, ट्रस्ट हु हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन वाज नॉट ग्रांटेड अप टू 31 मार्च 2020। सर केस 2 यही हो सकता है, मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई की थी, इसमें अप्लाई की थी सर, ओल्ड रिजीम में अप्लाई की थी, मैंने न्यू रिजीम में अप्लाई नहीं की थी। आपको पता है 12AC वाला सेक्शन कब से अप्लाई हो रहा है, 1/4/21 से। पहले क्या हुआ था, कोविड के कारण ये डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, अमेंडमेंट जरूर फाइनेंस एक्ट 20 में आई थी, but it was extended from time to time. Now it is applicable from 1/4/2020. तो meaning thereby we were at this point कि मैंने रजिस्ट्रेशन पुराने रिजीम में अप्लाई की हुई है, पर मेरे पास अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। सर रजिस्ट्रेशन कितनी देर में आनी होती है सर, 6 मंथ्स में पुराने रिजीम में लिखा हुआ था, और अगर मॉडिफिकेशन करें तो 30 डेज में अप्लाई करना होता है, उस पर मैं भी बाद में। तो मीनिंग देयरबाय यहाँ पे किसके बारे में बात करें हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले अप्लाई कर रखी है। क्वेश्चन आया क्या सर उनको भी 10A दोबारा से फाइल करना है? आंसर इज नो सर, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल 10A एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12AB2। all the application pending before principal CIT and CIT shall be deemed to be an application made under section 12AC1 clause 6। सर जाम पूछ के मैंने इसको क्या, clause 6। इसका मतलब आपने अगर पहले 31 मार्च 21 से पहले अप्लाई की हुई है तो आपको नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट होगा। तो माइंड में एक क्वेश्चन आया, सर अब मुझे रजिस्ट्रेशन कितनी देर में मिलती है? मैंने प्रोविजन वहां तो मैंने करा दिया था 3 मंथ्स, यहां पे अभी करवाना है। यहां पे पीरियड कितने हैं, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज रिसीव्ड बाय PCIT/CIT। तो यहां पे क्या है सर, ध्यान से देखना। अब मेरे केस में 31 मार्च तक एप्लीकेशन वहां पे जा चुकी थी, उसकी एप्लीकेशन के पास CIT के पास कब आ जाएगी, बिकॉज मैंने तो पहले ही अप्लाई कर दी होगी, 1 अप्रैल को आ जाएगी। 1 अप्रैल का एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, एंड ऑफ मंथ क्या हुआ सर, 30th अप्रैल। 30th अप्रैल से 1 मंथ, तो किसी केस में आपको 31 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाए। सो मैंने सेकंड केस में वो केस कवर करना चाहा जहां पे सर हमने रजिस्ट्रेशन पहले से अप्लाई कर रखी है पर हमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। तो डियर फ्रेंड्स माइंडेड, आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा अप्लाई नहीं करनी, आपने 10A फॉर्म अप्लाई नहीं करना, नहीं फिल करना एज ऑफ नाउ। कल तक कोई मॉडिफिकेशन आ जाए, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बिकॉज नए फॉर्म में इन्होंने 12AB2 में ये तो लिख दिया। 31 मार्च को एक नोटिफिकेशन आई थी that CIT who will be grant registration will be the registration will be granted by the Bangalore CIT and not by the normal। therefore may be chances इसको शिफ्ट कर दें कि जी आप दोबारा से करें। एज ऑफ नाउ आपको कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना, 12AB2 में क्लियर लिखा हुआ है, आपकी एप्लीकेशन जो पहले फाइल हुई थी उसी को ही मान लिया जाएगा कि वो किसमें फाइल हुई है, 10A। नो नीड टू फाइल। सर ये रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में मिलेगी, 10AC में कितनी देर के लिए मिलेगी, 3 साल के लिए, और कितनी देर में CIT को देनी है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज रिसीव्ड बाय CIT। थर्ड केस मैंने खुद बनाया, ये ट्रस्ट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस बट रजिस्ट्रेशन अप्लाइड नॉट अप्लाइड अप टू 31 मार्च 21। क्या कह रहा हूं सर, आपका ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी था बट आपने रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 21 तक अप्लाई नहीं की, तो इस केस में क्या वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है? सर अगर मैं अदर फैक्ट में देखूं, मैंने यहां से एक एरो लगाया ये वाला, यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, 1 month prior to commencement of the previous year relevant to the previous assessment year for which the said approval is sought। तो मैं अगर आज की बात करूं, मान लो एक ट्रस्ट 2017 में बन चुका है, एक्टिविटीज भी कर रहा था, पर मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं ली थी क्योंकि लॉस चल रहा था। अब क्वेश्चन आया, क्या मैं उसकी रजिस्ट्रेशन आज की डेट में करवा सकता हूं? यस सर, आप उसकी रजिस्ट्रेशन आज की डेट में करवा सकते हैं। तो कितनी देर में मुझे फॉर्म में क्या होगा, पर यहां पे पढ़ूं तो वहां पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 month prior to commencement of previous year।
और इसका प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हो रहा है सर? 1/4/2021 से। 1/4/2021 से एक मंथ प्रायर देख लो तो वो क्या बन गया? 20th Feb 2021। तो सर एक बात बताइए सर, क्या मैं इसमें ये कह सकता हूं कि जी 28 मार्च 2021 तक आप करो? सर ये यहाँ पे सेक्शन नीड्स टू बी मेंडेड, बट मैं एक बात बता दूं, जो फॉर्म आया है उसमें बिल्कुल क्लियर है, रूल में भी क्लियर है कि आप रजिस्ट्रेशन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी फ्रॉम 1/4/22, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 और फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 21-22। तो आज की डेट में ये एनोलॉजी जरूर है कि रूल्स और एक्ट में कॉन्ट्रडिक्शन जरूर है, बट इट विल बी रिमूव्ड। अगर मैं रूल्स पढ़ूं तो वो कहता है कि आप कभी भी कर सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी 1/4/22 से, असेसमेंट ईयर 22-23 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की मुझे रजिस्ट्रेशन मिलेगी। तो मैं आज इसको सम अप करूं तो मैंने ये निकाला कि जी मैं कभी भी साल में इसकी रजिस्ट्रेशन करा दूं, मेरे पे ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज द रूल इज क्लियरली सेइंग, रूल 2C सब रूल 7 clearly says that registration shall be applicable for assessment year 20-23। सो ये वाला वहां पे जो एक्ट मेनोलॉजी है वो खत्म। आगे सर, उसके बाद सर आ जाएं कि जी जो सीआईटी है, सीआईटी पीरियड इन विच सीआईटी विल ग्रांट एग्जम्पशन, मैंने बता दिया वो 1 मंथ में करेगा, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब मैंने इसमें जान पूछ के एक ट्रांजिशनल प्रोविजन की एक स्लाइड बनाई है। क्या कहा? ये स्लाइड किसको डील कर रही है? डियर फ्रेंड्स, ये स्लाइड इसको ही डील कर रही है, इस चीज को, सॉरी इस चीज को, सेकंड वाले बी वाले केस। बी वाले केस में क्या था जी? मैंने रजिस्ट्रेशन पहले ही अप्लाई कर दी है, बट मेरे पास रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 21 तक नहीं आई। तो बड़े क्वेश्चन आते हैं, सर क्या मुझे फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रजिस्ट्रेशन एग्जम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक क्वेश्चन ये आता है। सेकंड क्वेश्चन, मेरे को दोबारा से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो हमने एड्रेस कर दिया, आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। तो देखते हैं क्या सर, पहला पीरियड कितना था? 6 months फ्रॉम ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन इन द ओल्ड रिजीम हैज नॉट एक्सपायर्ड। इसका मतलब मैंने जनवरी 2021 में अपनी रजिस्ट्रेशन की थी और 6 महीने के अंदर उन्हें रजिस्ट्रेशन देनी थी, अभी वो 6 months का टाइम एक्सपायर नहीं हुआ। तो इस केस में क्या मुझे दोबारा से एप्लीकेशन देनी है? मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, आपको कोई एप्लीकेशन नहीं देनी दोबारा से। 10 है आपका ऑटोमेटिकली है, जो है आपने नहीं करना। आपको रजिस्ट्रेशन 31 मई तक आपके पास आएगी एंड इट इज मैंडेटरी। सेकंड केस, institutions who was having registration has applied for modification। ध्यान से सर प्लीज, मेरे पास रजिस्ट्रेशन तो थी पर मैंने पुराने रेजीम में मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। डियर सर प्लीज बी विद मी, मेरे पास रजिस्ट्रेशन थी पर मैंने मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। इस केस में क्या होगा सर? अब मेरे पास तो मैंने किसके लिए अप्लाई कर दिया? मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया और वो मॉडिफिकेशन अभी पेंडिंग है। सर इस केस में माय व्यू इज दैट कि जी आपको नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, आपको 10A में ऑटोमेटिकली आपका शिफ्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी फाइल नहीं करना होगा। प्लीज बी विद मी, मैं क्या कह रहा हूं, मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन पहले जा चुकी है, मैं भी 12AB पे नहीं, अब उस पे नहीं आया, 2nd, 3, 4 पे, 5 पे। मैं किस पे हूं कि भी मेरे पास रजिस्ट्रेशन पहले थी बट मैंने उसके ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई किया और उसकी एप्लीकेशन ओल्ड रिजीम में लगा चुका हूं और उसका पीरियड 6 months एक्सपायर नहीं हुआ। मुझे इसका मतलब इसमें और इसमें सेम आ गया सर, बट माइंड इट प्लीज, मैं इसको क्लॉज 6 में कवर कर रहा हूं, क्लॉज 1 में कवर नहीं कर। क्लॉज 1 में कौन से कवर होने हैं? जहां आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट थी और आपस खाली रजिस्ट्रेशन है, आपके कोई भी आपने मॉडिफिकेशन नहीं करनी, तो गलती नहीं करनी। जहां पे आपने मॉडिफिकेशन पहले से अप्लाई की हुई है, आपका क्लॉज कौन सा रहेगा? क्लॉज 6। सर अगला क्वेश्चन आया, पीरियड ऑफ 6 months हैज बीन एक्सपायर्ड ऑन 31 मार्च 2021। आपको सबको पता है देयर इज एन एपेक्स कोर्ट जजमेंट ऑफ सीआईटी सोसाइटी ऑफ प्रमोशन एंड एजुकेशन इलाहाबाद 67 टेक्समेंट 264 सुप्रीम, व्हिच सेज दैट कि अगर 6 months में सीआईटी ने एप्लीकेशन को ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, इट विल डीम टू हैव बिन। तो सर इस केस में आपको मान ली जाएगी आप पास रजिस्ट्रेशन है, तो अगर आप मान ली जाएगी आप पास रजिस्ट्रेशन थी तो आप किस में अप्लाई करेंगे? 12A1 AC1। क्यों? मैंने पहला क्लॉज कौन सा था? यहां पे आइए प्लीज, ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ओल्ड रिजीम। अगर 6 months का पीरियड आपका एक्सपायर हो चुका है तो प्लीज बी विद मी,
हम आपको ये बताएंगे कि जी आपका उस केस में आपको 12A1 में जाना है, नॉर्मल में नहीं जाना। चलिए सर, उसके बाद मैंने एक 11/7 रोहित जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ ना जी सर, थोड़ा आप पेस स्लो रखिए, कई बार ना बफरिंग का इशू हो रहा है, आवाज ना ओवरलैप हो रही है, तो ओके कई बार क्या होता है आपका ना स्पीड ज्यादा बोलने की हो रही है तो उससे बफरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। डन सर, डन। तो आप थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे तो ज्यादा रहेगा। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है सर। सर अब हम एक 11/7 का इशू था, अगर मैं उसको पीछे लेके चलूं आपको, 11/7 में क्या था? 11/7 में ये था क्लॉज 4, 12A सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए थी, उसका क्लॉज 4। उस क्लॉज में क्या था सर कि हमने ये छोड़ दिया था कि 11AC जब हम पढ़ेंगे क्या था। सर आप सबको पता है फाइनेंस एक्ट 2020 ने ये क्लियर कर दिया था कि आप 1023C में या 11 में साइमल्टेनियसली एग्जम्पशन नहीं ले सकते। तो ये जो प्रोवाइजो आई है ना, ये प्रोवाइजो ये आई थी 16/2020 से एबिड। इस प्रोवाइजो ने क्या कहा था कि अगर आप पास 11 की भी एग्जम्पशन है और 1023C की अप्रूवल भी है, तो उस केस में अगर आप पास 11 की रजिस्ट्रेशन है और 1023C की अप्रूवल है, तो उस केस में आपका सेक्शन 11 की आप एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। तो मीनिंग देयर बाय, अगर मैं कहूं सेक्शन 11 की एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे, तो फर्स्ट प्रोवाइजो से आने के बाद मेरे पास अगर दो थी, एक अप्रूवल भी थी और एक रजिस्ट्रेशन भी थी, तो उस केस में 1023C ही प्रिवेल करेगा और 11 नहीं मिलेगा। ये किसने कहा था? 11/7 के फर्स्ट प्रोवाइजो। और 11/7 सेक्शन क्या कहता है सर? 11/7 सेक्शन ये कहता है कि आप किसी भी एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर और कोई भी इनकम चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, सिर्फ एग्रीकल्चर की इनकम की एग्जम्पशन मिलेगी। किसी टाइम पे 1038 की एग्जम्पशन शेयर्स की होती थी, जो अब विड्रॉ हो चुकी हुई है, जिसपे हम 20% टैक्स दे रहे हैं। आज की डेट में अगर कोई भी इनकम विच इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, only agriculture income is exempt in the hands of the charitable institutions. Otherwise, all the incomes which are received by the charitable trust, they have to apply as per 11. उसके प्रोवाइजो ने क्या कहा? उसके प्रोवाइजो ने ये कहा कि आप दोनों में से एक चीज ऑप्ट कर लीजिए, बट उसने ऐसा नहीं बोला कि एक चीज ऑप्ट कर लीजिए। उसने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जी आपको अगर आपके पास 11 भी है और अप्रूवल 1023C की भी है, तो उस केस में आपकी 11 की इनऑपरेटिव हो जाएगी और 1023C वाली प्रिवेल करेगी। मीनिंग देयर बाय अब इस केस में सेसी पास कौन सी आ गई? 1023C की अप्रूवल रह गई, यहाँ पे 1023C अप्रूवल रह गई। उसके बाद एक प्रोवाइजो 2 ऐड किया। उन्होंने ये कहा द इंस्टीट्यूशंस व्हिच वर इनऑपरेटिव मे अप्लाई अंडर 12A। इसका मतलब वो 1023C से शिफ्ट करना चाहता है, इसमें 12AB में 11-12 की एग्जम्पशन लेना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो उस केस में हम उसको कहां पे लेके जाएंगे? 12A का सब क्लॉज 1, उसका सब क्लॉज 4। ये था हमारे पास 11 सबसेक्शन 7। तो मीनिंग देयर बाय, अगर मैं इस पे वापस आऊं तो यहाँ पे क्या था? वेयर रजिस्ट्रेशन बिकम इनऑपरेटिव ड्यू टू फर्स्ट प्रोवाइजो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द ट्रस्ट हैज अप्लाइड 1023C, और इफ ट्रस्ट वांट्स टू ऑप्ट 1023C एंड वांट्स टू री रजिस्टर अंडर 12AB, उस केस में भी आपका कौन सा क्लॉज लगेगा? आपका ये 4 में कवर हो जाएगा। इसका मतलब 10AB फॉर्म लगेगा उस केस में। चलिए सर अब ये मेरे पास आ गए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। अभी तक हमने पीछे केस में अगर हम रिवाइज करें तो हमारे पास पहले दो केसेस कौन से थे? पहला केस था जो रजिस्टर्ड है ओल्ड रिजीम में। 6 केस क्या था? जिन्होंने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं ली, फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। ये दोनों हमने कवर कर लिए थे। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब हम इसको कवर करने लगे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इज द केस री-रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड इन न्यू रिजीम। इसका मतलब मैं पहले मेरे पास रजिस्ट्रेशन नए रिजीम में आ चुकी हुई है। इसका मतलब ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कब लगेंगे? मेरे पास पहले 12AB में रजिस्ट्रेशन थी। थर्ड केस में भी क्या है? मेरे पास 12AB में रजिस्ट्रेशन थी, पर कौन सी थी? प्रोविजनली थी। यहाँ पे कौन सी थी? 5 इयर्स वाली थी। यहाँ पे कितनी थी? 3 इयर्स वाली। इसका मतलब मैं उसको रिन्यू करा रहा हूं।
मीनिंग देयर बाय अगर मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बात करूं तो वहां यहां पे वर्ड क्या था, री रिन्यूअल ऑफ ओल्ड रजिस्ट्रेशन, री रिन्यूअल ऑफ ओल्ड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, और ये हमने अभी पढ़ ही लिया कि जी ये कौन सा है। और फिफ्थ क्या है, मॉडिफिकेशन। आपने फॉर्म कौन सा लगाना है, 10AB लगाना है सर। 10AB इज द फॉर्म विच इज टू बी यूज्ड। इसका मतलब अगर मैं इजी करूं, एक बारी आपने 12AB में रजिस्ट्रेशन ले ली तो आपके लिए फॉर्म 10AB यूज होएगा एज पर क्लॉज 2 एंड एज पर क्लॉज 3। और फोर्थ में क्या कह दिया, फोर्थ में ये कह दिया कि फर्स्ट प्रोवाइजो के कारण अगर आपकी रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो गई थी और आप 1023C से ऑप्ट करके फिर 12AB में आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, पर फॉर्म कौन सा लगेगा, 10AB। मॉडिफिकेशन इन ऑब्जेक्ट्स करेंगे फिर कौन सा फॉर्म लगेगा सर, 10AB फॉर्म लगेगा। दीज आर द फॉर्म्स व्हिच आर टू बी यूज्ड। 10A किसमें लगेगा, सिर्फ दो ही रीजंस में 10A लगेगा। पहला मैंने बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन पहले से रजिस्टर्ड हैं या जिन्होंने आज तक कभी रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई की उनके लिए फॉर्म कौन सा लगता है, 10A। 10AB मैंने डिस्कस कर दिया। अब इशू आ गया, इसको कितनी देर में करना है सर, ये करना है 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। देयरफॉर इफ रजिस्ट्रेशन इज, मैंने एक एग्जांपल ले, मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन, मेरे को ग्रांट कब हुई, 20 सितंबर 2021। कितने साल के लिए ग्रांट होनी थी सर, 5 साल के लिए। वो एक्सपायर कब हो रही है, 31 मार्च 26 को। तो इस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन कितनी देर पहले अप्लाई करनी है, ये है देयरफॉर द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल shall be made with at least 6 months prior to expiry of the set period। 6 months prior to the expiry of set period का मतलब सर यहाँ पे क्या आ गया, 31 मार्च 26 से 6 months बिफोर। वो कितना आ गया सर मेरे पास, 30 सितंबर 2025। मीनिंग देयर बाय मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं रिन्यूअल की। इसका मतलब एक बारी आपको 5 साल की रजिस्ट्रेशन मिल गई थी, अब हम उसको रिन्यू कर रहे हैं। सेकंड केस, सर पहले मुझे रजिस्ट्रेशन अगर प्रोविजनली मिली होगी तो कितने साल की मिली होगी, 3 इयर्स के लिए। अब 3 इयर्स एक्सपायर होने लगे हैं तो मैं उसको दोबारा क्या कराऊंगा, रिन्यू कराऊंगा। तो इस केस में क्या होएगा, री रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन न्यू रिजीम। तो उस केस में क्या आएगा सर, एप्लीकेशन शैल बी मेड, इसमें ना विच एवर इज अर्लियर है सर, दोनों में क्या है, 6 months प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब जब आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाए उससे 6 months बिफोर और विद इन 6 months फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज। सर डिफरेंस है, वहां पे वर्ड कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज नहीं था, वहां पे वर्ड जो पीछे पढ़ा था हमने वहां पे वर्ड प्रीवियस ईयर पढ़ा था, यहाँ पे वर्ड है कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज। तो कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या लेंगे, क्या मेरे पास रेजिंग ऑफ फंड्स आ जाए तो आप कहोगे वो मेरी एक्टिविटीज शुरू हो गई, नहीं सर। क्या इसमें हम लें कि इसमें लें, माई व्यू इज दिस that when your charitable activities are you have started, in that case it will be assumed that you have started the commencement of the activities। therefore इसमें उन्हें क्या कहना चाह रहा है, लेजिस्लेचर की ये इंटेंशन है कि जो हमारे पुराने रिजीम में चलता था कि एक्टिविटीज उन्होंने ट्रस्ट ने शुरू ही नहीं की तो हम रजिस्ट्रेशन क्यों दें, उन्होंने एक ब्लैंकेट एग्जम्पशन दे दी, ठीक है जी हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे 3 साल की, और आपको आप 3 साल की रजिस्ट्रेशन को आप क्या कराओगे, रिन्यू कराओगे। रिन्यू कराना जरूरी नहीं 3 साल के एक्सपायर होने से ही कराना है। अगर आपकी एक्टिविटीज पहले हो गई हैं तो जिस मंथ से आपकी एक्टिविटीज शुरू हुई हैं उसमें प्लस 6 months ऐड कर लीजिए, उसको कंपेयर कीजिए विद 6 months बिफोर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्ली। सेम इज विद 11(7) एंड मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में ओनली चेंजेस 30 days। नाउ वी आर कमिंग टू सर फॉर्म ऑनलाइन। सर यहाँ पे मेरे पास 21 रोज हैं टोटल, जो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे मैंने फिल करनी होती है। तो सर ये पहली जो मेरे पास रो आता है वो मेरे पास सेकंड रो की बात करता है, जिसमें हम बात करते हैं कि जी आपको सेक्शन कोड सिलेक्ट करना है। तो मैंने अभी इसको सेक्शन कोड को, दिस इज द स्क्रीन विच इज अवेलेबल इन फॉर्म 10A। जैसे ही आप ओपन करेंगे आप वहां पे स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो इसको इजी करने के लिए मैंने एक चार्ट बना दिया। अगर मैं बात करूं सर 12AC1, सर साथ में मैंने एंड पे ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कोड कौन सा डालना है। दिस इज द एट लास्ट आई हैव जस्ट मेंशन, बिकॉज वहां पे वो पूछता है दी अंडर विच कोड। अगर आप सीधी सी बात, अगर आपकी ट्रस्ट पहले से रजिस्टर्ड है, इफ योर ट्रस्ट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ओल्ड regime in section 12A1, then you have to select code 1
and this code is been mentioned here. अगर आपकी ट्रस्ट नहीं है तो उस केस में आपने क्या सिलेक्ट करना है, कोड 2. प्लीज बी विद मी, मैं अभी बात कर रहा हूं सेक्शन 12 की. इसका मतलब सेक्शन 12 में दो ही क्लॉजेस थी, अगर मैं याद करूं. एक क्लॉज थी 1 और एक क्लॉज थी 6. इसमें कौन सी मिलती थी, प्रोविजनल, और इसमें कौन सी मिलती थी, 5 इयर्स की. तो अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप क्या ऑप्ट करेंगे, आप इसमें 1 सिलेक्ट करेंगे. अगर आप पास पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप क्या ऑप्ट करेंगे, 2. सर ये तो आ गई चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए. अब आ जाए हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए. जब मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल ओल्ड रिजीम में, मैंने आपको बताया था कि हमें अप्रूवल किसमें करनी है, 4, 5, 6, 6A. ये चारों पॉइंट हमने डिस्कस किए थे. वहां पे हमने पढ़ा भी था पब्लिक रिलीजियस, इसमें कौन से आते हैं, जैसे मैंने कहा था आपको गोल्डन टेम्पल, बिकॉज दिस इज पब्लिक रिलीजियस पर्पस whose name is appearing in the official gazette as notified by the central government. Similarly, अगर वो चैरिटेबल पर्पस के लिए है तो वो अगर नोटिफिकेशन नोटिफाइड है वो किसमें आता था, क्लॉज 4. 6 में कौन से आते थे, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और आपकी जो है टोटल रिसिप्ट्स इज मोर देन 1 crore which has been increased to 5 crore and you are not financially substantially financed by government. This is the 1023C6 और ये 6 है. तो सर मैं अब इसको सम अप कर रहा हूं, मैं इजी बोलता हूं, सीधी सी बात. अगर आप पहले रजिस्टर्ड हैं 12A में तो 1 नंबर. अगर आप 12A के लिए पहली बार आ रहे हैं तो 2 नंबर. अगर आप 1023C में कहीं भी रजिस्टर्ड थे तो 3 to 6 नंबर. अकॉर्डिंग टू ये 3 आएगा, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है. ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें से आप जिसमें आप पहले फॉल कर रहे हैं. अगर आपकी पहले 5 में आई हुई है, 1023C क्लॉज 6 में आ चुकी है तो आप 5 सिलेक्ट करेंगे. अगर 6A में आपने पहले की हुई अप्रूवल तो आप 6 सिलेक्ट करेंगे. तो ये तो बात आ गई सर, हमारी पहले रजिस्ट्रेशन हो रखी. अब 7 to 10 कौन सा होएगा, न्यू ट्रस्ट नॉट अप्रूव्ड अर्लियर. तो उस केस में कौन सा आएगा, 7 to 10, और 7 to 10 वो ही ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगी जैसे यहाँ पे मैंने 3 to 4, 5, 6 डाला. उसके बाद आ गया सर ATG. सर बार बार ये क्वेश्चन आता है क्या ATG का भी ये फॉर्म सेम है. यस सर, सारे फॉर्म सेम है, बट इतना है कि अगर आपने 12A में अप्लाई करना है तो 12A का एक फॉर्म अलग से फिल करेंगे और ATG के लिए दोबारा इस फॉर्म को अपलोड करेंगे. वंस यू हैव कंप्लीटेड 12A रजिस्ट्रेशन देन यू विल अगेन फिल ATG. फॉर ATG यू हैव टू फिल इट अगेन. इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. वहां पे है मेरे पास सेक्शन कोड 11 and 12. 11 उसके लिए डील करता है जो पहले से रजिस्टर्ड हैं और 12 उसके लिए डील करता है जो न्यू रजिस्ट्रेशन. तो मीनिंग देयर बाय, अब मैं इसको सम अप करूं, आई कैन से कोड नंबर 1, कोड नंबर 3 to 6 एंड कोड नंबर 11 आर फॉर ट्रस्ट्स, आर फॉर अप्रूवल्स, आर फॉर ATG which are already registered and just want to revisit for 5 years. In that case these codes are to be selected. These are very much important because अगर आप ये select दूसरा कोड कर देंगे, नीचे दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी जो ब्लॉक है वो ऑटो पॉपुलेटेड ब्लॉक है, वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन हाईलाइट हो जाएगी, कुछ नहीं होगी. तो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर व्हाइल फिलिंग द फॉर्म. सर ये उसके बाद आ गया रो 2 में. रो 2 में सर इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि जी ATG भी पढ़ लिया, 12A भी पढ़ लिया, 1023C भी पढ़ लिया. एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं 35 में. जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं सर उसको भी यही फॉर्म लगना है 10A. सो मीनिंग देयर बाय अगर मैं बात करूं इसकी तो इस केस में भी क्या होगा, 35 वाले में साइंटिफिक रिसर्च केस में भी यही लगना है. बट 35 के केस में द सेक्शन कोड्स व्हिच आर टू बी यूज्ड आर फ्रॉम 13 to 9. अगर आप सेक्शन 35 को देखेंगे, 35(1) के क्लॉजेस हैं, क्लॉज 2, क्लॉज 3, और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें. किस किस कैटेगरी को मिलता है, रिसर्च एसोसिएशन को मिलता है, यूनिवर्सिटी को मिलता है और कंपनी को मिलता है. तो अगर आप इन तीनों में फॉल करते हैं, रेलिवेंट कोड सिलेक्ट करके सेक्शन कोड यहां से सिलेक्ट करेंगे. दिस वाज रिगार्डिंग रो नंबर 2 ओनली. नाउ आई एम कमिंग टू रो नंबर 3. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है रो नंबर 3. वहां पे मुझसे पूछता है नेचर ऑफ एक्टिविटीज. सर गलती नहीं करनी हमें. अगर नेचर ऑफ एक्टिविटीज है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटीज में आप ATG, मान लीजिए मैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन,
और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हूं तो उस केस में मुझे क्या सिलेक्ट करना था, चैरिटेबल, बट गलती से आपने वहां पे सिलेक्ट कर दिया रिलीजियस, तो उस केस में आप जब एटीजी फाइल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज आपके केस में एटीजी किसको मिलती है, ओनली फॉर चैरिटेबल। रिलीजियस कम चैरिटेबल को मिल सकती है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ 5% ऑफ टोटल इनकम, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस आल्सो। So nature of activities must have to be selected with care that it is a charitable or it is a religious or it is religious cum charitable। सर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, पहले डिपार्टमेंट यूज्ड टू फाइट कि जी आपको 11(1) की एग्जम्पशन, या तो आप खाली रिलीजियस करते हो या खाली चैरिटेबल करते हो, आप दोनों काम नहीं कर सकते। बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दी रिलीजियस कम चैरिटेबल आप कर सकते हैं। तो it is a welcome move that in the department now time they have admitted that 11(1) can do religious cum charitable also। so अगर जिनका religious cum charitable है तो वो religious cum charitable में select करेंगे, और अगर 5% से ज्यादा है तो वो ATG नहीं ले पाएंगे। 5% कौन सी नेचर, रिलीजियस नेचर। चलिए इसके बाद मैंने लिखा, क्या सर ये वाला पॉइंट क्या 35 वाले में देना है, साइंटिफिक रिसर्च वाले में? नहीं सर, ये 35 वाले में नहीं देंगे। ये किस में देंगे? अगर आप 11 में ले रहे हैं, या आप 1023C में ले रहे हैं, या आप ATG में दे रहे हैं, तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज को आप यहाँ पे फिल करेंगे। और मैंने लिख दिया अगर आप रिलीजियस हो तो आपको ATG 5 का बेनिफिट नहीं ले सकते। साइमल्टेनियसली कवर कर दिया इसको। उसके बाद सर हमारे पास आ गया जो 4th रो आ गई मेरे पास, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्होंने लिखा है ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनीज एंड अदर। सर अदर इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर 2 सब सेक्शन 31 देखूं तो अदर आर्टिफिशियल पर्संस, अदर जुडिशियल पर्संस आर आल्सो कवर्ड। अगर आपकी ना सोसाइटी है, ना ट्रस्ट है, ना कंपनी है, और आपकी कोई और आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके बारे में आप अदर्स में डाल के ऐड करें। अगला पॉइंट है सर रो नंबर 4(a) to 4(b), where the application is established under the instrument। सर अगर मैं इसके जो रूल्स हैं वो भी पढ़ूं तो उसने क्लियर लिखा हुआ है, बहुत सारे पुराने ट्रस्ट हैं, जैसे गुप्ता सर ने भी अभी बताया था कि 80 years old ट्रस्ट हैं, तो कई बार होता है उसकी ट्रस्ट डीड वगैरह डॉक्यूमेंट ना मिले, तो हम कहते हैं जी वेयर एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड अंडर एन इंस्ट्रूमेंट और विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट। अगर तो इंस्ट्रूमेंट में है तो सर आप यस करके उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट, इनकॉर्पोरेशन नंबर और किस अथॉरिटी ने ग्रांट किया। अगर आपके पास आज की डेट में वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, पर आपको कोई ना कोई असेसमेंट ऑर्डर में या FCRA में या कहीं ना कहीं आपको ये क्लैरिटी हो रही है कि जी आपके केस में आप पास रजिस्ट्रेशन की डेट है, तो इस केस में खाली रजिस्ट्रेशन की डेट देनी है वेयर देयर इज ए नो डॉक्यूमेंट अवेलेबल। चलिए सर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेंट। सर ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि सर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेंट क्या है। सर ये रिलीजियस पहला, और बाकी सारे कौन से हैं 215 के। तो मैंने यहाँ पे एक नोट कर दिया कि जी 215 में क्या है जी, वही 7 क्लॉजेस, रिलीफ टू पुअर, एजुकेशन, योगा, preservation of environment, preservation of monuments and advancement of any other public good। इसको आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप सिलेक्ट करेंगे आप किस में आ रहे हैं। अगर आप एक से ज्यादा में आ रहे हैं तो आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में 2 कर सकते हैं। अगर आप खाली रिलीजियस करते हैं तो आप खाली फर्स्ट को टिक करेंगे रिलीजियस और बाकी को टिक नहीं करेंगे। चलिए जी रो नंबर 6 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उस पर बहुत सारी क्वेरी आती है कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है whether the trust deed contains the clause of trust is irrevocable। प्लीज मैं क्या इसको नो टिक कर दूं? My strict advice is you, आप इसको yes टिक करेंगे। अगर किसी के MOAs में, बायलॉज में डिसोल्यूशन का क्लॉज नहीं है, डोंट वरी, आज अमेंड कर दें, अमेंड करने के बाद अमेंडेड आप लगा देना, आपके कोई चेंज इन ऑब्जेक्ट्स नहीं हो रहे, आप इसको हमेशा yes से टिक करेंगे। उसका रीजन है और मैं उस पर भी आऊंगा कि जी रो नंबर 6 में वर्ड क्या लिख रहा है, where the trust deed contains clause that trust is irrevocable। सर प्लीज यहाँ पे सोसाइटी मिसिंग है, यहाँ पे कंपनी मिसिंग है, ऐसा क्यों? अगर मैं पुराना फॉर्म देखता था तो वहां पे खाली ट्रस्ट के बारे में था, और यहाँ पे अगर मैं आज की डेट में यहाँ पे यस नहीं ना करता, चाहे मैं सोसाइटी हूँ, मेरा फॉर्म अपडेट नहीं करेगा, वो कहेगा जी आपने यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट नहीं किया। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन केस ऑफ सोसाइटी एंड इन केस ऑफ कंपनी, अगर मैं बात करूं सेक्शन 8 कंपनीज की भी,
तो उस केस में भी क्या है सर, 248 सेक्शन कहता है कंपनीज एक्ट का कि आप जब भी ये कंपनी वाइंड अप करेंगे तो आप ये कंपनी दूसरी कंपनी को देंगे जो सिमिलर एक्टिविटीज करती है, मीनिंग देयर बाय all the assets of the section 8 company will be transferred to the another company. Similarly in society act ये clauses होती हैं, बट ट्रस्ट डीड में ऐसी क्लॉजेस नहीं होती, इसलिए यहाँ पे वर्ड है ट्रस्ट डीड। बट जब मैं फॉर्म फिल करता हूं, चाहे मैं सोसाइटी हूं चाहे मैं ट्रस्ट हूं, आई हैव टू ऑप्ट दिस ऑप्शन इज मैंडेटरी, आई कांट स्किप दिस ऑप्शन, आई हैव टू सिलेक्ट यस। अब सर अगर मैं नो सिलेक्ट करता हूं तो क्या? तो सर मैंने उसके लिए एक सेक्शन 11(1) लिखा है, वो क्या बात करता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 60 to 63, subject to provisions of section 60 to 63, the following income shall not be included in the total income of the previous year of the person in receipt. इसका मतलब अब इसने क्या कह दिया कि अगर 62 to 63 को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब इस पे भी सारे रेवोकेबल ट्रांसफर्स के जो मेरे पास 60 to 63 में डेफिनेशंस दिए हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। 61 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। मैंने एक एसेट गुप्ता सर को दे दिया 5 इयर्स के लिए, उनके नाम पे नहीं किया, ठीक है जी बात को, बट उस एसेट उनको दे दिया। तो मीनिंग देयर बाय अगर मैं उनको कहूं कि मैंने उनको इनकम दे दी, अगर रेंट वो रिसीव कर रहे हैं और एसेट मेरे पास ही है, एसेट की ओनरशिप मेरे पास है, तो इस केस में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। तो अगर आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे तो आप पे 60 to 63 की प्रोविजंस हिट हो जाएंगी, रेवोकेबल ट्रांसफर की लग जाएगी। रिवोकेबल ट्रांसफर में ये लिखा हुआ है सर, अगर मैं किसी को एसेट देता हूं फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स 6 इयर्स, और इरिवोकेबल में क्या है, मैंने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी दे दिया। अगर मैंने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम दे दिया और तब तक वापस नहीं लूंगा तो हम उसको क्या कहते हैं, इरिवोकेबल ट्रांसफर। चलिए सर क्वेश्चन उसके बाद आ गया सर रो नंबर 7। अब रो नंबर 7 में सर आपको पूछता है वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड अंडर दर्पण पोर्टल और एफसीआरए एक्ट और एनी अंडर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सर प्लीज बी विद मी, बार बार ये क्वेरी आ रही थी सर दर्पण पोर्टल में कब देनी है। सर दर्पण पोर्टल में तब देनी है अगर आप नीति आयोग की साइट पे गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो आपको देनी मैंडेटरी है, बट कब, इफ यू हैव रिसीव्ड डोनेशन और यू आर इंक्लाइंड टू रिसीव डोनेशन इन फ्यूचर ईयर्स, तब आप यहाँ पे देंगे। अगर आपने वैसे रजिस्ट्रेशन कराई थी और आज तक आपको गवर्नमेंट से नहीं आई, कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आई, तो आप इसको आप दर्पण पोर्टल वाले को इग्नोर भी कर सकते हैं। एफसीआरए वाली आपको देनी मैंडेटरी है। अगर आपने फॉरेन से कोई डोनेशन रिसीव करनी थी और आपने एफसीआरए में कोई रजिस्ट्रेशन की हुई है, आप यहाँ पे यस करेंगे। इसमें 3 तरह की जा सकती हैं, एक दर्पण पोर्टल वाली, एक एफसीआरए वाली और एक इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में बहुत सारा की रजिस्ट्रेशन है सर, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 80G की रजिस्ट्रेशन है आपके पास, 1023C की अप्रूवल है, 12A की रजिस्ट्रेशन थी, तो वहां पे आप क्या देंगे, रेलिवेंट देंगे, और जैसे ही खोलेंगे ये एक मैंने एक सैंपल दे दिया, ऐसा नीचे बन जाएगा। कौन से लॉ में आप हैं, कब आप टू बी इनेबल्ड व्हेन द फॉलोइंग कोड्स। अब ये रो 2 कौन सा है सर, रो 2 हम कर चुके हैं पहले, प्लीज बी विद मी। रो 2 हमने अच्छे से की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि बहुत सारी विंडोज ओपन हो रही थी जिसमें कोड्स थे 1 से लेकर। तो रो 2 वही यहाँ पे कोड कह रहा है, यहाँ पे मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी वो आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका ऑर्डर आ जाएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, किस अथॉरिटी ने आपको ग्रांट किया है और किस डेट से ग्रांट। दीज आर दी कॉलम्स व्हिच यू हैव टू फिल व्हाइल अपलोडिंग दिस फॉर्म। उसके बाद आ गया सर, वेयर एनी एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड मेड बाय द एप्लीकेशन इन द पास्ट हैज बीन रिजेक्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास एक एसएससी का फोन आया, एक सीए का फोन आया, ही सेड मी सर मेरी रजिस्ट्रेशन तो मेरे पास है पर उससे पहले कभी रिजेक्ट हुई थी, तो मैं यहाँ पे यस करूं कि नो करूं। मुझे यहाँ पे यस करना पड़ेगा, मैंने लिख भी दिया है, द इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ इट हैज बीन रिजेक्टेड इन पास्ट। चाहे आपके पास करंट में तो रजिस्ट्रेशन है पर पहले तो कभी ना कभी रिजेक्ट हुई है। आगे सर 1021 की एग्जम्पशन किसको मिलती है, वो इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च एसोसिएशन में 35 में डील करते हैं, उनको 1021 में उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है। अगर आपकी इनकम एग्जम्प्ट है, अगर आप 1021 वाले में है ही नहीं तो आप नो टिक करते हैं। उसके बाद सर 9A में डिटेल ऑफ ऑथर्स, फाउंडर, सेटलर्स आनी है। सर इस केस में मैं आपको बता दूं, आपको आपके फाउंडर की, सेटलर की, ट्रस्टी की फोन नंबर, पैन कार्ड, आधार या आधार कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर,
address, everything has to be filled. अगर आप इसको फिल करेंगे तभी आपका फॉर्म अपलोड होगा, अदरवाइज ये फॉर्म अपलोड नहीं होगा। नाउ आई एम कमिंग ऑन द रो 10। सर रो 10 ऑटो पॉपुलेटेड है, मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता। अगर आपने लास्ट असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न फाइल कर दी है और उसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई थी, तो यहाँ पे यस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने फाइल नहीं की तो 30 जून इज विद द एक्सटेंडेड डेट, इट इज रिक्वेस्टेड कि आप उसको फाइल कर दीजिए, तो आप ये यस आ जाए। बिकॉज इस पॉइंट की बहुत रेलिवेंस है पॉइंट नंबर 10 की, बिकॉज बार बार क्वेरी आती है सर मुझे बैलेंस शीट लगानी कि नहीं लगानी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पॉइंट नंबर 10। मैं कराऊंगा बैलेंस शीट किस केस में लगनी है, किस केस में नहीं लगनी, इन माय नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सर 11 to 19 which are very important rows which are needed to be fulfilled, which are required to be filled while uploading the form. There is a question whether it is compulsory or not. So I have just made a gist कि कब कब जरूरी है और कब कब जरूरी नहीं। सर मैंने तो सीधी सी बात कही, जब आप नई रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और पहले आप पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी। पहला केस 2 नंबर में क्या था सर, वेयर, ये 2 नंबर किसका है सर, 02, ये 02 उसकी बात कर रहा हूं सर जो मैंने कोड 2 की बात की थी रो नंबर 2 में। डियर फ्रेंड्स प्लीज बी विद मी, मैं बार बार इसी बात पे कह रहा हूं कि अगर आपने कोड में जो सेकंड रो में कोड जो सिलेक्ट किया है वो 02 सिलेक्ट किया है, 02 किसके लिए है कि आपके पास पहले रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 से लेके 20 तक इंफॉर्मेशन फिल करनी मैंडेटरी है। अगर आपने अप्रूवल पहले नहीं थी और आप फ्रेश अप्रूवल लेना चाह रहे हैं और आपने कोड कौन सा फिल किया था 7, 8, 9, तो भी आपको 11 to 20 फिल करनी मैंडेटरी है। अगर आप 80G में यहाँ पे कोड नंबर 12 कर रहा हूं और अगर आपका 11 कोड किसका है, 11 कोड उसका है जो पहले से रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये 11 से 20 किस पे एप्लीकेबल नहीं है, जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, उस केस में 11 to 20 आर नॉट मैंडेटरी। अगर आप ऊपर से कोड गलत सिलेक्ट कर दोगे तो आपको वहां पे ये ऑन कर देगा, अगर आपका करेक्ट कोड सिलेक्ट हुआ होगा तो आपको ये दिक्कत नहीं करेगी। सो हम यहाँ पे थे सर कि अगर सीधी सी बात, अगर मैं क्रक्स निकालूं, इफ यू आर न्यू रजिस्टर्ड, यहाँ पे वर्ड रजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड आ गया, यहाँ पे वर्ड आ गया नॉट अप्रूव्ड, यहाँ पे क्या आ गया, अब पहली बरी 80G 5 में ले रहे हैं। इसका मतलब अगर आप पहले रजिस्टर्ड थे तो आपको 11 to 20 में कोई भी इंफॉर्मेशन फाइल नहीं करनी। रुकिए बस 1 मिनट के लिए, एक केस में करनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा था यहाँ पे फॉर्म पॉइंट नंबर रो नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लास्ट ईयर की रिटर्न 31 मार्च 20 की रिटर्न फाइल नहीं की तो उस केस में, अगर यहाँ पे आपकी ऑप्शन नो पे टिक कर रहे हो आप, तो उस केस में आपको 11 to 20 आर मैंडेटरी। सो आई हैव जस्ट मेक द नटशेल कि किसमें मैंडेटरी है, किसमें मैंडेटरी नहीं। दूसरा एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है ये कि जी सर क्या मुझे ये ऑन डेट ऑफ कब की देनी है। सर जो रूल्स हैं उसमें क्लियरली दिया हुआ है, उसमें क्लियरली दिया हुआ है सर कि आपको ये कब देनी है, ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन देनी है, जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं उस दिन देनी है। तो मैंने एक कलर में आपको 11 to 14 are related to the liability sides and 15 to 19 are related to asset sides। इन दोनों का टोटल इक्वल होगा और आप इसको फिल करेंगे और इसमें इंफॉर्मेशन कौन सी जाएगी, ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो क्या सर अगर आप इसमें आते हैं तो क्या सर आपको यहाँ पे फिल करना जरूरी पड़ेगा? यस, आपको ये फिल करना मैंडेटरी तब है अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन में हैं, और न्यू रजिस्ट्रेशन में है तो आपको ये करना जरूरी है, और उसके लिए आपको 31 मार्च 21 की भी बैलेंस शीट फाइनल करनी मैंडेटरी। उसके बाद सर इनकम रिसीव्ड इन 3 previous years preceding the previous year in which application is made। इसमें क्या है सर, अगर आपको कोई पिछले 3 साल की इंफॉर्मेशन देनी है, कब गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव हुई है या CSR से रिसीव हुई है या अदर स्पेसिफिक ग्रांट्स रिसीव हुई है या अदर इनकम रिसीव हुई है, ये पिछले 3 साल कौन से आएंगे सर, 20, 19 और 18, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी। किन किस केसेस में जाएगी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द माय बिलो दिस पॉइंट्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड और वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट वाज 21A। ये क्या कह रहा है सर 21A? 21A में ये है सर, ये पहली बात कि 21A किसके लिए है सर, ये बात कर रहा है कि 80G के लिए। वेयर द फंड्स, देखो वहां पे वर्ड क्या, वेयर द फंड्स और इंस्टीट्यूशन हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ रिलीजियस नेचर, तो
तो वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन है ना ATG 5 में कि रिलीजियस नेचर से 5% से ज्यादा आप नहीं कर सकते, और आप पहली बड़ी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। अगर आप पहली बड़ी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको 21 और 21B फिल करना पड़ेगा। ये किसके केस में करना है? ओनली इन केस ऑफ ATG। चलिए सर, मैंने एक ATG का एक फॉर्मेट बना दिया कि क्या क्या ATG में जाएगा। नेचर ऑफ एक्टिविटीज में आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? आप चैरिटेबल भी कर सकते हैं, चैरिटेबल कम रिलीजियस भी कर सकते हैं, बट रिलीजियस नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट में आप क्या करेंगे? डोंट सिलेक्ट रिलीजियस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। वेदर द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड ऑन दर्पण पोर्टल और FCR अंडर प्रोविजंस ऑफ टेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले आपको कहा है, पहले आप 10A अप्लाई करें, उसके बाद ATG का फॉर्म फिल करें। ATG का सेपरेट फॉर्म जाएगा, 10A ही जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं तो आप कौन सी रोज फिल करेंगे? 11 to 20। अगर आप पास पहले से रजिस्ट्रेशन थी तो आपको 11 से 20 फिल करने की जरूरत नहीं है और सीधा 21 आपको फिल करनी पड़ेगी। चलिए जी, फर्स्ट टाइम दीज आर दी थिंग्स। अब ये सर उसके बाद ना ये एक चार्ट लग जाता है कि भाई क्या क्या मैंने अटैच करना है। दिस इज द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जब आप सारा फॉर्म फिल कर देंगे तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है कि कौन कौन से मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाने। तो मैंने एक मार्क कर दिया। पॉइंट नंबर 1 में क्या लगना है सर? बायलॉज, MOA और AO आप पास जो भी है, आपकी सोसाइटी, ट्रस्ट, डीड जो भी है उसके रिगार्डिंग यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पॉइंट नंबर 2 सर, पॉइंट नंबर 2 मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, उनके लिए रेलिवेंट है जिनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि ट्रस्ट बनी है कि नहीं है। बट डियर फ्रेंड्स, जब मैं फॉर्म अपलोड करता हूं तो वो मुझे विंडो 2 में कुछ ना कुछ फिल करने के लिए कहता है। तो उस केस में मैंने अपने केस में पॉइंट नंबर 1 वाले डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, बिकॉज अदरवाइज वो अपलोड नहीं कर रहा था तो बायलॉज और MOA ही आ जाएंगे। बट actually there is an error in the form because it was not required to be filled in a case where there is no documentary evidence. But if I have a documentary evidence, I was falling in the first case, second case should not be applicable. Third sir, third case में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है? कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपकी रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट लग जाएगा जो आपको ट्रस्ट में या आपको सोसाइटी में आपका रजिस्टर्ड है या कंपनी में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आ जाइए सर फोर्थ सर, मैंने ऊपर लिख दिया FCRA। अगर आपने रजिस्ट्रेशन FCRA के लिए भी है तो आप FCRA का सर्टिफिकेट यहाँ लगाएंगे। उसके बाद आ जाए सर फिफ्थ में मैंने ये लिख दिया कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपके पास 12A, 12AA या 12AB में कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसकी आप रजिस्ट्रेशन लगी थी वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। बट माइंडेड अगर ATG में कर रहे हैं तो ATG वाला डॉक्यूमेंट लगाएंगे। उसके बाद सर इसमें बहुत कंफ्यूजन चल रही है कि जी मुझे एनुअल अकाउंट्स किसमें लगाना। सर मैं क्लियरली बोल रहा हूं, एनुअल अकाउंट्स सिर्फ उसमें लगाने हैं जहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन पहली बारी हुई है। अगर आपके पास पहले रजिस्ट्रेशन हुई है, एनुअल अकाउंट्स लगाने की जरूरत नहीं। बट अगर आपने रो नंबर 10 में जहां लिखा है कि 31 मार्च 20 की रिटर्न फाइल नहीं की तो उस केस में आपको 3 साल के डॉक्यूमेंट्स वो मैंडेटरी मान। उसके बाद लिखता है सर क्लिक हियर टू अपलोड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी इज परमिटेड, इंग्लिश इज परमिटेड, कोई दूसरी लैंग्वेज में है तो आप उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट सर, उसके बाद ये आ गया मेरे पास ATG के केस में कि जी ट्रस्ट के केस में जो फॉर्म्स ऑफ ट्रस्ट हैं उसमें क्या क्या लगेगा। सर वी ऑल आर अवेयर दैट विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020 एक अमेंडमेंट आई थी कि जी जो भी ATG की डोनेशंस हैं डोनर को तब मिलेंगी अगर डोनी एक रिटर्न फाइल करेगा। और रिटर्न कौन से फॉर्म में फाइल करेगा? इट इज फॉर्म 10BD, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स टू बी फाइल्ड बाय रिपोर्टिंग पर्सन अंडर ATG 5 क्लॉज 8। क्या कब फाइल करना है? सर ये 21-22 फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट ईयर इज, मैं रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसका मतलब 21-22 के सब्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर कब आ गया? 31 मई 2021। अगर 31 मई 2021 की बात 22 की बात करें तो इसका मतलब 21-22 की मुझे रिटर्न कब तक फाइल करनी है? 31 मई। क्या जाएगा? डिटेल ऑफ डोनर जाएगा, ठीक है जी बात को, उसका आधार नंबर या पैन नंबर मैंडेटरी है अलॉन्ग विद एड्रेस। इसके अलावा सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जी उसको बताना पड़ेगा उसने कौन सा पैसा दिया था, कॉर्पस के लिए दिया था, स्पेसिफिक ग्रांट्स के लिए दिया था या अदर्स के लिए। एक क्वेश्चन आया था कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रांट्स एंड कॉर्पस। सर कॉर्पस डोनेशंस आर फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट
एंड स्पेसिफिक ग्रांट्स, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी इस प्रोग्राम के लिए मैं 20,000 रुपीज दूंगा, and it should be utilized for that purpose. It is not for the particular project, it is only for the particular program. In that case, it is a specific grant. Others के केस में अगर अदर आपने दिए तो वो भी देंगे. उसके बाद इसका मतलब जब आप अगर बुक्स बना रहे हो तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कॉर्पस डोनेशन रिसीव हुई है, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव हुई है या अदर्स हुई है. मोड ऑफ रिसिप्ट, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे मोड ऑफ रिसिप्ट भी आपसे वो पूछ रहा है कि कैश में आई है, चेक में आई है, किस मोड में आई है, वो भी आपको बताना पड़ेगा. सर ये फॉर्म 80G के लिए भी है, 31(2) के लिए भी है, 35(1)(2)A के लिए भी है और 35(1)(3) के लिए भी है. मैंने बताया था एसोसिएशंस, रिसर्च एसोसिएशंस वो भी आती हैं, कंपनीज भी आती हैं, तो उन केसेस में ये उनको अगर उन्होंने कोई डोनेशन रिसीव की है तो उस केस में भी उनको 10BD फॉर्म करना मैंडेटरी. देयर वाज ए वेलकम मूव रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 4. सर होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल कोरोना में एक कंपनी ने 20 लाख रुपीस पीएम केयर फंड में डाल दिए या किसी और फंड में डाल दिए विच इज एलिजिबल फॉर 80G. अब उस केस में क्या होएगा सर, मान लेता हूं जी डाले तो किसने, कंपनी ने, बट कंपनी ने पैसे एम्प्लॉय से भी कलेक्ट किए थे, तो उस केस में उन्होंने कहा कि अगर कंसोलिडेटेड डिटेल में डोनर ने बाकी डिटेल भी दे दी है कि जी ये पैसा किस किस के आया था, तो उस केस में बाकी एम्प्लॉयज की भी इंफॉर्मेशन फिल करके ये बेनिफिट उनको भी एक्सटेंड कर दिया. थर्ड इज दैट सर्टिफिकेट. सर जो ये सर्टिफिकेट मिलना है, ये सर्टिफिकेट मिलना है 10BE में. सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन अंडर क्लॉज 9 ऑफ सबसेक्शन 5 of 80G, under clause 2 of subsection 1A of section 35A, this is 10BE. सर अब ये कब मिलना है, इसकी डेट भी सर 31 मई ही है. तो अभी एक दिक्कत ये आ रही थी कि रिटर्न, मैंने रिटर्न की डेट अगर 31 मई लिखी है तो क्या सेम डे आ जाएगा, तो दिस नीड्स क्लैरिफिकेशन, बिकॉज आप ये नहीं कह सकते जी दोनों डेटें सेम हो जाएं, इसकी डेट थोड़ी सी आगे जाना चाहिए थी, इट मस्ट हैव बीन शिफ्टेड अहेड. उसके बाद आ गया सर पेनल्टी. अब क्वेश्चन ये आया सर अगर कोई पर्सन 80G के लिए अप्लाई नहीं करता, ध्यान से प्लीज बी विद मी, आप सबको पता है कि 80G की भी रिन्यूअल जारी है इस टाइम. अगर वो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक पैसे रिसीव कर लेता है और वो इस फॉर्म को 10A फॉर्म को नहीं फिल करता, तो क्या जिस पर्सन ने डोनेशन दी है क्या उसको 80G का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नो. This has been purely linked with now 26 years. The receiving person has to file the return कि भी आपने ये पर्सन से डोनर से पैसा रिसीव किया, उनका पैन नंबर ही है, उनका आधार नंबर ही है. और अगर आप ये इंफॉर्मेशन फीड नहीं करते तो देयर इज ए लेट फी अंडर 234G which is to the tune of ₹200 per day, और ये आपको पे करनी पड़ेगी जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते. इसके अलावा दिस इज ए फीस, दिस इज नॉट ए पेनल्टी. इसके अलावा देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर पेनल्टी व्हिच इज से टॉक्स अबाउट 271K. वो कहता है कि पेनल्टी इससे अलग लगेगी, वो 10,000 से लेके 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है इफ ही फेल्स टू फर्निश सच स्टेटमेंट और फेल्स टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन. मीनिंग देयर बाय आपको डोनेशन का सर्टिफिकेट भी देना जरूरी है. जो आप अकाउंटिंग रिसिप्ट इशू करते थे अपने एम्प्लॉइज का, अपने डोनीज को, वो अब आपका नहीं चलेगा. जो डोनर को करते थे वो विल नॉट सर्वाइव, आपको ओनली ऑनलाइन वाली चलेगी चीज. इसका मतलब डोनेशन इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 10BE सर्टिफिकेट एंड नॉट अदरवाइज. ये रूल्स हैं सर, मैं इसके बारे में नहीं डिस्कस करना चाहता. एक सर और इश्यूज इसमें डील चल रहा था. अगर मैं रूल्स पढ़ता हूं तो उसमें लिखा हुआ है, एक सेक्शन है मेरे पास 11.4 और 11.4. ये एक सेक्शंस हैं जो बात करता है कि अगर कोई ट्रस्ट बिजनेस कर रहा हो तो उस केस में अगर वो ट्रस्ट सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उनको भी सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट एक्सटेंड हो जाता है. रूल्स में लिख दिया कि जी ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट 44AB में जाएगी. दिस is wrong which is mentioned in rules because there is one circular issued by CBDT in 1968 which clearly says that जो charitable trust की receipts हैं that cannot form part of 5 heads of income. I have quoted this circular कि उसके लिए 5 heads of income में नहीं जाती वो कभी भी. ऐसे ही एक कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट भी थी which says that it cannot be taxed under the 5 heads as given in section 14.
So meaning thereby there is no requirement for audit under section 44AB. जो रूल्स में लिखा हुआ है 44AB के लिए 11.4 और 11.4A के लिए वो गलत। कैंसलेशन इज प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। सर पहले ये बहुत इशू चलता था कि अगर मेरी ये 12AB4 और 12AB5 देयर आर टू सेक्शंस जहां पे बात चलती है कि CIT चाहे तो वो मेरी कैंसलेशन कर सकता है। सर जब से 115 TD आ गया है, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का चीज ही खत्म हो गई है। आफ्टर 115 TD they can apply 115 TD which says that equated increase in value of asset। अगर जितनी आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है उसमें से लिबिलिटी माइनस करके आपके वो टैक्स लिबिलिटी इंक्रीज निकाल देते हैं। सो आज की डेट में क्या कैंसिलेशन रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का है? टू माय नॉलेज दिस इज नॉट मोर लिटिगेशन, इट वाज वेयर इट वाज बिफोर 115 TD। नाउ रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये आया सर मैंने अप्लाई की रजिस्ट्रेशन पहली बार फाइनेंशियल ईयर 21-22, मैंने आज तक कभी रजिस्ट्रेशन अप्लाई ही नहीं की, तो क्या मुझे 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगी? सर इसके लिए आई जस्ट प्रे यू दैट प्लीज रीड सेक्शन 12A2 proviso. There are two proviso given in 12A2 which says that if your case is pending, then all the assessments which are pending as on a pending assessment on that sections 12A की आपको exemption और 12AB की आपको exemption मिल जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी जो आपने रजिस्ट्रेशन आज अप्लाई किया उसका बेनिफिट आपको एक्सटेंड हो जाएगा। और सेकंड प्रोविजो में लिखा है कि 147 ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन हम कभी भी ओपन नहीं करेंगे। दिस वाज द इशू। दिस इज द डॉक्यूमेंट्स व्हिच दे हैव मेंशन्ड। I have already discussed this part which I was talking about 11.4 and 11.4A, self-certified copy of annual accounts, that 44AB they were talking about. 44AB is not required. Don't get confused कि आपको 44AB में कुछ लगाना है, आपको कुछ नहीं लगाना। हाँ अगर आप 11.4 और 11.4A में हो तो आपको 3 साल की ये लगानी पड़ेंगी, पर these should be are not required to be audited under 44AB। सर अगर मैं रूल्स पढ़ूं तो उसमें एक और बात कहता है नोट्स ऑन एक्टिविटीज ऑफ द एप्लीकेंट। आज की डेट में कोई नोट का कॉलम नहीं है, हमें एक्टिविटीज मैन्युअली सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में नोट ऑन एक्टिविटीज कोई भी अलग से नहीं है। दिस इज वाज द होल माय PPT and any doubts I want that they should be taken care of. I am ready to address all the doubts. Yes, sir. Gupta sir, I request. It was really wonderful session, Rohit Kapoor ji, and you deliberated at length on all the issues pertaining to not only registration but some other general provisions as well. So sir, if any doubts are there, I am ready to address their doubts also. But I don't think there are any doubts, sir. So please continue. Sir, I have completed the session because I thought that for 1.5 hours I will deliver and for 30 minutes I will take the doubts. हाँ नहीं, that is true, but हमारे लोग जो है ना ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, तो थोड़ा सा इसको रिकैप्चुलेट कर देते हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ। तो सर मैं जब क्योंकि ऐसा है ना, कुछ लोग शायद लेट आए होंगे तो शुरू से एक बार रिविजिट करा लेते हैं। हाँ, within half an hour we can revisit the entire session. Yes sir. सर हम स्टार्टिंग से जब स्टार्ट हुए थे तो in the meantime if there are any questions they can ask. या फिर एक और अल्टरनेटिव है कि आप 10 मिनट में इसको रिवाइज करा दीजिए, 10-15 मिनट में, उसके बाद आप क्वेश्चन विल रिप्लाई इन चैट बॉक्स, वो भी हो सकता है। ठीक है सर, मैं ऐसे बट आई वुड सजेस्ट यू टेक अनदर 20 मिनट्स, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज फिर क्या है, क्वेश्चन नहीं पूछे फिर प्रॉब्लम आएगी। जी जी ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। एक और बात रोहित जी, इससे पहले कि हम आप सेशन को दोबारा शुरू करें, मेंबर्स यू नो as per CPE directives we are required to conduct elections of our study circle. So I propose that the existing team of CA RP Bharadwaj ji and Sunil Gupta ji should continue because they are doing a very good job.
despite this pandemic, and they have been wonderful. So if anyone has any objection to it, then they can please write in the chat box. Otherwise, we will presume that the current body of CA R.P. Bhardwaj ji as convener and CA Sunil Gupta ji as deputy convener will continue with your love and affection. Thank you. Continue, Gupta जी. हाँ जी सर, प्लीज. कुणाल आप गुलाटी. बताइए, आप बोलिए रोहित जी प्लीज. हाँ जी सर. तो मैं वी वर ऑन दिस कि आपको क्या क्या करना है. सो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट इज दैट कि जी बहुत सारा आजकल ये चल रहा है कि जी रजिस्ट्रेशन हम अप्लाई करें तो क्या करें. तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था. जस्ट आई एम गोइंग टू द फर्स्ट स्लाइड कि 12AC वाज डिवाइडेड इन 6 पार्ट्स. जो मैंने पहले 2 पार्ट सर यहाँ पे डील किए, ये वाले पार्ट्स, ठीक है जी. बात को ये वाले पार्ट्स किसके बारे में बात करते थे कि अगर तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, मैं बार बार कह रहा हूं सर आपको, आप जैसे ही रो नंबर 2 पे जाएंगे, अगर आप पहले रजिस्टर्ड हैं तो बी केयरफुल दैट आपने 01 सिलेक्ट करना है इन केस ऑफ 12A. और अगर आप 1023C वाले में हैं तो आप 3 to लेके 6 सिलेक्ट करेंगे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं. बिकॉज जैसे ही आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपके लिए फॉर्मेलिटीज आर वेरी लो, नो इंक्वायरीज टू बी मेड. और एक ब्यूटीफुल पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि जी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि उस केस में आपको 3 इयर्स की बैलेंस शीट लगानी है कि नहीं लगानी. यस, उस केस में आपको 3 इयर्स की बैलेंस शीट लगानी पड़ेगी इन केस ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, बिकॉज वेदर इट इज रिसीव्ड अंडर 12A or it is received under 1023C. Difference is in 12A you are getting a registration and in 1023C you are getting approval. और सर एक और क्वेश्चन ये एड्रेस आता है बार बार कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमें बेनिफिशियल कौन सा है. सर दोनों के अपने इन और आउट्स हैं. मैं आपको एक वैसे ही बता देता हूं जितना टाइम मेरे पास अभी मिला है कि अगर आप 1023C में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप पे कभी भी 115 TD की प्रोविजन नहीं लगती. 115 TD प्रोविजंस आर ओनली इफ यू आर कैरिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12. तो एक बेनिफिट है 1023C का. अब उधर से उसके अगर मैं एडवर्स में देखूं, एक सेक्शन है सर 11(1) के बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप फॉर एनी रीजन इफ द अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर और आप उस पैसे को अगले साल चाहें तो अगर अगले साल उसको इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ द अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड. दिस बेनिफिट इज नॉट एक्सटेंडेड इन द केस ऑफ 1023C. Furthermore, there are earlier there was a distinction of corpus donation, but with effect from Finance Act 2020, it has been removed. Now, in this case, if there is a corpus donation is received by a charitable institution or by approved institution, the provisions are same. They are now parallel. Earlier, it was used to that if you receive a corpus donation from a charitable institution, then in that case it was exempt under section 11(1)(d), and whereas in case of religious trust it was not exempt, but with effect from Finance Act 2020 they are at par. Third point which is very much relevant, which the question which is asked again and again, that what regarding the window 11 to 20, which is very much important. और सर एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ सर, जो 10AB फॉर्म है वो तो सर अभी पहले देखो 3 और सेकंड और थर्ड में वो कब यूज हो रहा है 10AB फॉर्म. 10AB फॉर्म विल बी यूज्ड इन केस आई एम रिन्यूइंग माय रजिस्ट्रेशन. ये रिन्यूअल के लिए है सर, ये वाले रिन्यूअल के लिए हैं. ये रिन्यूअल कब आएगा? जब पहले 5 साल कंप्लीट करूंगा या 3 साल कंप्लीट करूंगा फिर रिन्यूअल आएगा. या 11(7) भी कब आएगा? अगर मैं 1023C नए रजीम में लेता हूं फिर आएगा. और मॉडिफिकेशन इन ऑब्जेक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं और आपकी ये बात क्लियर है. इंक्वायरी कब होएगी? अगर आप 10AB फॉर्म भर रहे हैं और 10AB के अगर आप कंडीशंस में फॉल कर रहे हैं तभी आप जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे. सो मीनिंग देयर बाय इन नो इंक्वायरी इन फॉर्म 10A रजिस्ट्रेशन हैज टू बी ग्रांटेड. अगर आपकी रजिस्ट्रेशन आपने पहले ग्रांट कर रखी, अप्लाई कर रखी है और किसी रीजन के कारण वो रजिस्ट्रेशन नहीं आई तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. You have to stick on 12AB2, which clearly says that the registration which has been made earlier, it shall be automatically shifted to 12A subsection 1 clause AC clause 6. Meaning thereby
no need to fill form 10A again, it will be automatically shifted. कुछ केस ऐसे भी हैं ड्यू टू पैंडेमिक आप पास रजिस्ट्रेशन नहीं आई और 6 मंथ्स का पीरियड एक्सपायर हो चुका। अगर कुछ केस ऐसे हैं कि 6 मंथ्स का पीरियड एक्सपायर हो चुका हुआ है तो उस केस में यू कैन टेक द जजमेंट और एडवांटेज ऑफ सीआईटी वर्सेस सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन 67taxman.com which I have already given in my slides, so kindly go through it, it is one of the important journal. उसके बाद सर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन अप्लाई ही नहीं करता, अगर मैं रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करता, मेरे पास 31/3/20 तक रजिस्ट्रेशन है, 31/3/21 तक रजिस्ट्रेशन है और 31/3/21 के बाद मैं रजिस्ट्रेशन को आगे मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता, तो व्हाट विल बी द पोजीशन? सर इट इज ए क्लियर कट केस दैट इन दैट केस रजिस्ट्रेशन जो आपकी आएगी, आपको 115 टीडी नहीं लग रहा, बट इट इज माय व्यू ओनली कि भी 115 टीडी नहीं लगता, बिकॉज 115 टीडी कैन ओनली बी इन्वोक्ड if you are merged into an entity which is not registered, fail to transfer upon dissolution, or when there is a cancellation of registration. In my case, there is no criteria. So if you are not, so what will be the position? You will be taxable under 5 heads under section 14. This will only be happen 115 TD अभी तक अप्लाई नहीं कर सकता until unless some amendment is made. This was regarding this. उसके बाद सर हमने ये किया था कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने 3 तरह से इसको स्टडी किया था कि जी जो ट्रस्ट 31 मार्च 21 के बाद बनी है नहीं, उसके लिए पीरियड क्या होगा? उसके लिए पीरियड 1 मंथ है, पर ये 1 मंथ प्रायर टू प्रीवियस ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्लीज बी विद मी, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। और मैंने बताया था कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? प्रोवाइजो टू सेक्शन 3 की हेल्प लेंगे। बट अगर आपकी ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी और आपने आज तक रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं की, तो उस केस में क्या होगा? तो आई वाज ऑफ द क्लियर व्यू, अगर मैं फॉर्म्स देखूं, मैंने बताया भी था आपको रूल 2C सब रूल 7 में क्लियर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। देयरफॉर आप अप्लाई करें रजिस्ट्रेशन एनी टाइम एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर। देयर इज एन एनालॉजी इन द एक्ट एंड रूल्स, बट my view is that you apply it provisionally and you will get the benefit for full financial year, that is financial year 21-22 and assessment year 22-23. उसके बाद सर हमने ये भी 11/7 किया था। 11/7 की मैंने आपको बात बता दी है कहाँ पे है। उसके बाद एक और बात हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में से फॉर्म कैसे फिल करना है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच नीड्स टू बी टेकन केयर, जो हमने देखा भी था कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो बहुत सारी रोज आ जाती हैं सर। जैसे ही मैं रो नंबर 2 पे सेक्शन कोड पे आता हूं तो बहुत सारी रो आती हैं। वी हैव टू टेक केयर व्हाइल फिलिंग दिस रोज, हमें कौन सी रो सिलेक्ट करनी है। तो मैंने एक ब्रीफ दे दिया है कि कौन कौन सी रोज आपको सिलेक्ट करनी है। दीज वर द रोज विच वर यू रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखी है तो आप 1 सिलेक्ट करेंगे, अगर आप पहले से अप्रूव्ड हैं तो 3 to 6 में सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ATG पहले से है आप पास तो 11 सेलेक्ट करेंगे। बिकॉज इसके कारण आपके जब आप फॉर्म फिल करेंगे नीचे से 10 to 20 11 to 20 रोज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दीज कोड्स। सो डियर फ्रेंड्स, बी केयरफुल while filling the form because revision option is not possible in these forms. So I request you, जब भी आप करें, आप सेव करने की ऑप्शन है उसमें, आप आराम से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद 01 ऑप्शन लें, 02 ऑप्शन लें, in which option you are selecting. If I summarize it, is 2, 7, 10 and 12. These are 3 things which if I take if I will give a gist to this, then in this case only you are required to fill 11 to 20. Otherwise, in all cases, when I select 1 or where I select 3 to 6 or where I select 11, I don't have to require to file the accounts. I don't have to fill the form 10 to 20, form rows 11 to 20. This was regarding scientific research. कि साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग क्या है, हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक रिसर्च कौन कौन दे सकता है। रिसर्च एसोसिएशंस दे सकती हैं, कॉलेजेस दे सकते हैं, यूनिवर्सिटीज दे सकती हैं, हर कंपनीज दे सकती हैं। ये सेक्शन 35(1) में दिया हुआ है। ये तो सर आगे किसके बारे में बात आई कि
जब हम फॉर्म फिल करेंगे, जो रिसर्च एसोसिएशंस हैं, अगर वो उसमें अप्रूव्ड हैं, तो वो इसमें कॉलम सेक्शन कोड में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे इफ दे आर ऑलरेडी अप्रूव्ड। फर्दरमोर अगर वो पहले अप्रूव नहीं है तो उनको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेने के बाद 10A दोबारा से फाइल करना पड़ेगा। सेकंड वाज नेचर ऑफ एक्टिविटीज। नेचर ऑफ एक्टिविटीज आर टू बी टेकन केयर। हमें बहुत केयरफुली इसको देखना है, क्योंकि नेचर ऑफ एक्टिविटीज में चैरिटेबल, रिलीजियस कम चैरिटेबल, बिकॉज इसमें आपको 10A फॉर्म भरते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जब आप 10A दोबारा भरेंगे ATG के लिए, क्योंकि आपको पता है कि रिलीजियस के केस में ATG 5 इज नॉट एप्लीकेबल, सो वी हैव टू टेक केयर रिगार्डिंग दैट आल्सो कि जी उस केस में हमें क्या करना है। सेकंड पॉइंट which is very much important, that earlier in 11.1 there was, if we read the section of 11.1 which clearly says 11.1 exemption is available to trust or institutions who are engaged in religious or charitable activities, but there are plethora of judgments, and one of the Supreme Court judgment 43taxman.com 243 which has clearly said that if SSC can have religious and charitable purpose also. So if you are not going for ATG, you can comfortably select religious come charitable, and in case you are filing for scientific research under section 35(1), you are not required to fill the nature of activities. Now the next was, we have to select the type of constitution. It is a very simple, I am not repeating for the sake of convenience, I am avoiding it. Now it was 4A to 4D. 4A to 4D is if there you are having an instrument, because the rule says there are two types of trust which are without an instrument and trust which are with instrument. If you are with instrument, then you have to give date of incorporation, incorporation number, granting authority. If you are institution which is not having document in hand, but there is some document like assessment order or some other document, you can easily attach that document. You can select no, and only you have to fill the date of incorporation. Nothing is required. Objects of the applicant are to be taken care. It divides into two parts. One is religious and another is charitable. If I go through the sections only, religious is not given in the definition of income tax, but the charitable is of course given in the definition of income tax as per section 2 subsection 15. There are 7 clauses which talks about the charitable trust, which says relief to poor, education, medical relief, yoga, preservation of environment, preservation of monuments, and advancement of other objects of general public. But dear friends, I assure you that while selecting, you can select two options also. You can say I am religious and charitable also object. You can only say I am religious by selecting relief to poor and education also, by relief to poor and medical leave. In these days, many hospitals are come up and they are selecting relief, medical leave and relief to poor. They can select two options. There is no problem. The system allows us in selecting 2 points. We can select 2 options at a point in row number 5. Next was row number 6, which talks about the trust deed. Trust deed must contains that whether the trust deed contains the clause revocable or not. There was a lot of query that the trust deed does not mention absolutely that the irrevocable or not, but dissolution clause has been there. Dear friends, dissolution clause is equivalent to irrevocable only, because I have already told you in case of companies, section 248 itself says you can't transfer section 8 company to another company except who is in the same type of organization, who is giving relief to poor or medical relief or any kind of charitable or activities. Similarly, if I talk about trust deed, if the trust deed does not contain irrevocable, then I request you that in that case you please amend your trust deed by making the amendments. What you have to do is that you have to pass a resolution and submit 1 copy of resolution along with the changes in the registrar, office of registrar. Once it is submitted, they will give you the copy. The copy which you get, please attach that copy. And I am telling you that in case of 10A form, there is no part to make inquiry. They can't even check whether you are carrying the activities as per the object of the trust while granting 10AC form. But after that, they can check.
I'm not saying that while giving the application, while filing the application and while granting the registration, there is no check. This is automatic. I have just discussed what is section 60, 61, 62, and 63. Next portion was what was the application is required on Darpan portal under FCRA Act or under application of income tax Act. There was a query that the cessi is registered under Darpan Act but not able to give the registration number. I only assure you that registration number is only required to be given if you have received government grants or you are intent to receive. If you have never received, then you can also miss it because it is written in the instructions given in Rule 2C itself. If you are having FCRA, then you have to give the details, registration number, date of registration, authority of registration, and this column will be pop up when you will fill the form. And please, it is a request that I again and again am saying that focus on row number 2, because row number 2 is the vital important because it is used many ways. For example, here it is also talks about row number 2 only. Next was whether registration has been rejected. We have already done this. We are not dealing again. In point number 9, it was what will be the case in the case of founder and trust. In the case of founder and trust and shareholders who are holding more than 5%, your details are required to be mentioned along with their PAN number or Aadhaar number, and mobile number is also compulsory. So please fill that documents. Otherwise, your application will not be accepted because it will not allow you. The system will not allow you to move forward if you do this. 10th point was the income has been filed for last assessment year. It is talking about assessment year 2021, and if the 2021 return has not been filed and the CBDT has extended the due date, you all are aware about the due date. So if you have not filed, please file in time so that it should be updated here. Next was 11 to 19, and there was a lot of query that we have to file the balance sheet or not, we have to file 11 to 19 or not. I have just made a gist in which case it is required. If I make a crux of this, it was only required in case of new registration, new approval, new ATG, and if you have not filed the return for financial year 19-20, then only this is required. Otherwise, this is not required. 21A, we have already discussed that it is only required for ATG and ATG only for fresh registrations and not for the other registrations. Nature of activities, requirement of ATG, because ATG, there was a query whether ATG is required to be filled in a separate form. No, ATG is also required to be filled in a same form, but you have to file the form 10A again. You can't say that in the same form you can opt for ATG. One 10A form for charitable or approval and one 10A form for ATG separately, meaning thereby form number is same, but you have to refill the again. And while filling the form, these are the points which you have to take care. And furthermore, as regard the balance sheet portion, I have already made you clear that if you have not filed the return for 31st March 20, then only you are required to upload the balance sheet for 3 years, or you are also required to file the balance sheet for 3 years where you have not, you are a new trust. Otherwise, you are not required to file the returns for last 3 years. There was a question that how a person can file the return for 3 years if the trust has been made within a period of 2 years. It does not say that all the returns has to be filed. It says that the return has to be filed, the balance sheet has to be filed from the date of existence. Meaning thereby, if your trust is for 2 years, then 2 years balance sheet will only be submitted and not 3 years. This was the documents to be attached. I have already discussed you when we talk about document number 2. This is the document number 2, which is only required if there is no instrument. But the system does not allow me if I keep it blank. So it is my advice that the documents which are submitted at point number 1 can again be repeated at point number 2. Third most, which is the 6th point, for which there is a lot of query. I have already told you 3 years balance sheet in the case may be only where no registration is taken place or where answer to column number 10 is no. So this was regarding the 10 BD. There was one query which I have just left. I also want to address it here only. That in case of ATG, somebody was saying me that it is applicable for financial year 2021. Dear friends, it is applicable from financial year 1/4/2021, not for
financial year 2021. So please be sure that if you have given donation, then the detail of donor is required, his Aadhaar number or PAN number is mandatory. Even the nature of donation, whether it is corpus donation or specific grant donation or other, even the mode of receipt. One question which I have left here is also that whether I have to file the return by, for example, if A has given donation multiple times in a year, 5 times, whether I have to file the consolidated return or I have to make the 5 entries in it. You have to file the consolidated return, but you don't have to say that the 5 times you are again required to make update the form 10BD. No, you can combine the details which he has given, but only thing is to be taken is if it is for corpus, then you have, and another is for specific grants, then you have to segregate. Otherwise, there is no need to segregate. You just can consolidate the details of donor, and Aadhaar number and PAN number is mandatory. This return is required to be filed in the case by 31st May of succeeding financial year. In our case, it will be the 31st May 2022. And after this form is filed, then a certificate has to be issued by the donee, which is in the form 10BE, and which is required mandatory. And the late fees for not filing the form or other for the other, and for there is a penalty of 200 rupees per day. Furthermore, I have just seen a message click from the Gupta sir, whether the limitation period given by the Apex code in the recently would apply in this case. Sir, no, it will not apply in our case. It is only applied where there was a no blanket extension, because in that case it is not applied. But I must say that we must fill it because the portal will be closed automatically. But due to COVID times, it is possible that government may extend this 30th June date to next 2-3 months. It is possible. Next was penalty. Sir, fees is separate and penalty is separate. Fees is required to be paid immediately and penalty is separate. So penalty will be under section 271K and fees is under section 234G. These were the rules. I have dealt in an issue regarding the 44AB. If I go to the, these are the rules which I have just copied as it is, which says that where a business undertaking is held by application as per the provisions of section 11(4) and the applicant has been in existence, then in that case the self-certified copies, and it was saying as per section 44AB. My dear friends, 44AB is not applicable, because I have given a detailed facts regarding, I have also mentioned a circular that 44AB, if you are also doing any business in the trust by following provisions of section 11(4) and 11(4A, meaning thereby you don't have to require to get their accounts audited. These are the incomes which are to be treated by giving the benefit of section 11(12), and the section 14 is not applicable in that case. Therefore, the 5 heads of incomes are not applicable. Therefore, what I just want to say that the audit is not required. It was wrongly mentioned. It is an error. It will be removed later on regarding the this 44AB issue. Next was the cancellation. Can be cancellation prospective or retrospectively. I have dealt this issue after introduction of 115 TD. This issue is now settled issue that 115 TD department will invoke, and retrospective and prospective is not in now in will be the question of litigation. Now the last question was retrospective registration. I have already told you there is a section 12A subsection 2, and there is a proviso given in that if there is the assessments which are pending are pending, the benefit of exemption will also be applied to that assessments. And furthermore, in the second proviso, they have mentioned that no 147 notice will be issued for non-registration if for the earlier years, not for the current year, for the earlier years, because if you are not, they can't record the reasons that we have opened the case for non-registration purpose once you apply for 12A. This was the earlier also, and they have just made added at the section 12AB here. With this, sir, I think the deliberation is over now. Floor is with you, sir. Thank you very much, CA Rohit Kapoor ji. It was really a wonderful session.
Although we listened to you for Right, the first sir. time, but it was just excellent. Pardon, sir? I said that although we listened to you for the first time, but it was an excellent sir. session. And Thanks a lot. definitely you tried to put in a lot of practical inputs into the issue. Thanks a lot, sir. With this, I would like to. But there is one question of R.P. Rajinder Bhardwaj ji. Setia ji. R.P. Bhardwaj ji, please conclude the session by presenting a vote of I thanks and request seeking his my fellow permission for participants. putting it on the portal also. I request my friends, if you have any question or any issue regarding this which could not be cleared, we are available for 5 minutes more. Any question from any member, please? रोहित जी, Yes, sir. सर एक रो नंबर 7 के बारे में जरा दर्पण के ऊपर थोड़ा सा दोबारा से कैन यू रिपीट रो नंबर 7? सर मैं दे 3 points रो are नंबर there. 7 सर. Yes. Yes, sir. मैं खोल रहा हूं. कपूर साहब सचदेवा जी हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं और बहुत ही नॉलेजेबल हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं. सर रो नंबर 7 खोल लिया सर. यस यस यस. इसके अंदर ये थर्ड पॉइंट जो है एफसीआरए एक्ट और एनी प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. सर ये थर्ड वाले पॉइंट को जरा आप डिस्कस करेंगे क्या क्या कवर होगा इसमें? मैं बता रहा हूँ सर, दर्पण पोर्टल इज ए नीति उद्योग पोर्टल जहां पे कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट्स आती थी ना इस रजिस्ट्रेशन से पहले, थर्ड वाला because सर government थर्ड वाला पॉइंट को एनी प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट उसमें क्या क्या कवरेज any provisions of income tax include sir 1023C approvals, 80G you are holding or 1046 approval you are holding, because if I go to the back history of 11.7, what 11.7 says today is कि जी आपको प्रोवाइजो ऐड कर दिया कि अगर आप पास 2 रजिस्ट्रेशन है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगी, दूसरी रजिस्ट्रेशन रिडंडेंट हो जाएगी. नाउ द डिपार्टमेंट वांट्स अगर आप पास इनकम टैक्स में किसी भी रजिस्ट्रेशन, whether it is 80G, whether it is approval, whether it is the registration, please fill this form. और जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना सर, वहां पे पोर्टल में हमें सिलेक्ट करने के लिए 1023C भी दे रहा है, 1046 भी दे रहा है, 80G भी दे रहा है और 12A भी दे रहा है. So meaning thereby, if you are holding all registrations in income tax or in any form, वो आप यहाँ पे fill करेंगे, because they want a check that this lessee was holding how many registrations. After amendment of 11.7, you can't hold 11 and 1023C approval simultaneously. You have to forego 12 and 1023C will prevail. This is the basic concept why they have asked for all the registrations. रोहित जी ये डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो जाएगा 1080G का? यहाँ भी कह सकते हो डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा. हाँ, सेपरेट फॉर्म भी. नहीं सर, अगर ऊपर वाले में आप आए जहां से आप डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं सर, ऊपर वाले में अगर आपने वहां पे एक आप अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़े, उन्होंने लिखा है कि अगर आपने ऊपर ही 1023C की दे दी हुई है तो दोबारा आपको यहाँ देने की जरूरत नहीं है सर. मैं आपको वो जो इंस्ट्रक्शन है वहां पे आपको अभी मार्क करके सेंड कर सकता हूँ सर. They have written there. Okay. Then it's all right. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Okay, sir. Thank you, Rohit ji. Thanks a lot. थैंक यू सचदेवा जी, आपकी प्यारी प्यारी आवाज सुन ली सी बहाने. अरे सर, रोहित जी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड स्पीकर, बहुत अच्छे से बोलते हैं और ये पेनल्टीज के ऊपर भी बोलते हैं. वेरी गुड स्पीकर, एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत है इनका और मैंने काफी बार इनको सुना है. जी. अच्छा, थैंक यू रोहित जी. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. Thanks a lot, sir. Any more questions, sir? मलिक साहब कोई क्वेश्चन? अरुण जी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं. तो it appears there are no more questions. We are highly thankful to our speaker for today's session, Mr. Rohit Kapoor ji. Sir, वे ऑफ प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छा लगा आपको सुन के और हम लोग कोशिश करेंगे फ्यूचर में भी वी शैल ट्राई टू इंटरेक्ट विद यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर मेंबर्स. आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, मतलब आई अप्रिशिएट इट अ लॉट. आई एम आल्सो थैंकफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. सर देवा जी का मुझे नंबर सेंड कर देना, मैं उनका वो क्वेरी का जहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो भेज दूंगा.
हाँ जी बिल्कुल, सर। आप रोहित जी मुझे भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगा उनको। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक वैसे मैं Sir, नंबर we भी have शेयर a- कर दूंगा आपसे, पर आप मुझे भी भेज दीजिएगा। हाँ जी, है। डन सर, डन। गुप्ता जी ये पीपीटी भी शेयर कर देना सर। यूट्यूब चैनल बनाया हुआ हाँ है study पीपीटी circle। ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है, ग्रुप में शेयर हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स सर। So, with your kind permission, I would like to upload this presentation on a YouTube channel of the study circle so that our members who missed the Sure, sir, opportunity sure, sir. could share your views and get benefit from it. श्योर सर, नो इश्यू। गुप्ता जी प्रेजेंटेशन भी डाल दूं वहां पर? सर हाँ प्रेजेंटेशन के बिल्कुल डाल साथ ही दीजिए, क्लियर होगा। बिल्कुल डाल दीजिए, डेफिनेटली। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो हाँ। फाइनली I am thankful to all of you for making this event a success. And with the permission of the founder convener, I would like to end the meeting formally. Definitely, we all enjoyed a lot. Thank you, sir. And congratulations to Bhardwaj ji and Sunil Gupta ji for doing wonderful job and on being re-elected as convener and deputy convener. Sir, it is a बहुत ही अच्छा responsibility. काम कर रहे हैं और ऐसा ही सब लोगों का प्यार बना रहे। थैंक यू भारद्वाज जी, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। It is a responsibility cast upon us, and with the supervision of Mr. R.K. Gupta, we are able to perform our duties very well. Thank you, sir. Thank you for giving a chance for one Thank more you year. all. So, Thank you I'm all. ending the meeting formally for all of now. Please. हाँ जी, thank you, thank you.